नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। मैं हूं नेशन नाउ पर एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ, और नेशन नाउ है कहां? हमेशा आपके साथ। प्रदीप जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। You know, every day I see the AQI figures between Delhi and Mumbai. Of course, today there's a big difference. Mumbai is slightly better than Mumbai, but Mumbai is slightly better than Delhi today. So. Slightly better than Lahore. Yes, and slightly better than Lahore as well. So, but as far as Delhi is concerned, Delhi is at about 357 odd. We are at about 257 odd in terms of AQI. लेकिन फिर भी it's not a good situation. Let's be very clear. It's not a very nice or good situation to be in. Vehicular pollution and the pollution caused by so much of construction work. The problem, however, is that since you have so many infrastructure projects going on all at the same time, what are you going to do? There's really nothing very much that you can do except hope and pray that the powers that be don't give permission to cut down more trees. And that, I think, seems to be impossible, because every day we find हर रात को, भले वो आरे हो, भले वो कहीं और हो, without cutting off trees, you can't really do very much. वही हाल मैंग्रोव्स का है, वही हाल हमारे 4 नदियों का है. मतलब ये जरा कुछ सिचुएशन बहुत अनकंट्रोलेबल हो रही है. You have to strike a balance somewhere. Yes. We are scared when we exit air quality level, and then we see Lahore is the worst in the whole world, and second is Mumbai. And then we are something that drastic steps has to be taken by this government. Right. CM Eknath Shinde said he's going to make the air purifying towers everywhere. That's not going to help. That's not going to help. But there were deeper problems when you discuss with the environmentalist. Environmentalists talked about how the dumping grounds are another place of a volcano waiting to burst where ecology is concerned. जी, सबसे बड़ी बात ये है कि as far as the four rivers, जो dumping grounds है ना साहब, yes, उसमें क्या है? There is a lot of toxic waste. Exactly. वो toxic waste जो है, it has gone underground. बिल्कुल. And it has got into your underwater table water. stream. Yes. Now it has got into your underwater stream. Yes. Now as the result of which underground water table के अंदर अगर चली गई, yes, yes, तो उसके बाद there is nothing left. How will you recharge the aquifers all over the place? Because those aquifers themselves would have been completely polluted, and that is going to lead to a lot of problems. No, you need to have a leadership that talks and takes decisions about all these things. In Eknath Shinde and Dev Fadnas, we have a leadership. But where BMC is concerned, now for the past 1 year, we see absolutely, a kind of thing, a leaderless, a rudderless way the things are moving. Because these decisions have to be taken by the BMC themselves. It is, what are we doing with the dumping grounds? Dumping grounds के बारे में क्या है? Long term solution क्या है? Feasible solution क्या है? Feasible की बात है कि 53,000 crore के budget है. I don't think we talk about feasibility at all. We are concerned about how bad the ecology is and how Mumbai is going to improve. Let's ask the very effervescent spokesperson from the Bharatiya Janata Party, Rani Dwivedi ji. I think she is with us. Rani ji, namaskar. Namaskar, Rajiv ji. How are Namaskar. you? Thank you so much, ma'am. It's a real pleasure having you back again on the show. Real pleasure. Yeah. Thank you so much. Thank you. Just a couple of things. I don't know whether you would like to comment on this. जहाँ तक BMC का प्रश्न चलिए, at the moment, of course, it's only been run by the administration. आज की तारीख में सिर्फ ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं BMC को, because elected representatives नहीं हैं. लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि कोई कानून बनना चाहिए BMC को भी लेकर के कि भाई in terms of what should be allowed and what should not be allowed? क्योंकि आज की तारीख में मैं मान करके चलता हूँ कि इस वक्त हमारे साथ है रानी द्विवेदी जी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत खास ज़रूरत है. मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो धूल और मिट्टी उड़ती है, उसकी वजह से मुंबई हैज़ नाउ गॉट द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड. तो इस विषय में कोई बैलेंस हम लोगों को लाना पड़ेगा यहाँ पे. रानी जी, योर थॉट्स ऑन दिस? Yes, Rajiv ji. जी. Being citizen of Mumbai, Yes, ma'am.
we all see the development which is going on. You can say, as you said, so many Yes. projects are going, and Which we are are which are looking which are absolutely necessary. Which are absolutely necessary. I yeah, agree. Yes. which are absolutely necessary. So what we can do, we can plant more trees. Yes. Then we can try to get diesel vehicles to electronic vehicles. Yes. Then we can try to get it at dumping yard upgraded, where as before you said ki there is so many wastage thing which is going to underwater. Yes. So we have plan to clear that all and get it purified properly, so that dumping yard should not get a bad waste in that, so that pollution will be controlled. The other hand, myself, I am specially request everyone to go for electrical vehicles, so that diesel pollution will be less, and plantation of maximum tree. Because Ji. as you said, development is very important, but at the same time we should control our pollution also. रानी To get द्विवेदी जी, our- यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल सामने आता है. Now, this is something that was revealed during our show. Even I didn't know about this. I've been in Mumbai now for years and years. I came here in '93. 30 साल हो गए तकरीबन मुझको मुंबई में. Even I didn't know this. अभी क्या है कि BMC का जो गार्बेज का ट्रक आता है हर एक हाउसिंग सोसाइटी में, they refuse to lift garbage unless and until you have segregated your garbage. Yes. आपका वेट गार्बेज अलग होना चाहिए, ड्राई गार्बेज अलग होना चाहिए. लेकिन मुझे मालूम नहीं, शायद आपको मालूम है या नहीं है, ये सभी गाड़ियां जब कांजूर मार्ग जाती है ना, वो पूरा का पूरा गार्बेज दोबारा मिक्स हो जाता है. वैसे ही मिक्स करके उसको दोबारा डंपिंग ग्राउंड में डालते हैं. तो मेरा ये कहना है, why do we do this? I mean, as Mumbaikars, you are also a Mumbaikar, apart from being from the BJP, you are a Mumbaikar. We have to do something about this. What is going on? Raju ji, what I said, जी the Mumbai Mahanagar Palika lead with some other party till today. जी Now the administrator people are looking in it. The policies are coming very strongly and very strictly. The garbage should be दोनों गार्बेज अलग अलग होना चाहिए, वेस्ट और नेचुरल गार्बेज. जी लेकिन ये तो हम बीएमसी को रिक्वेस्ट कर ही रहे, अपग्रेड कर ही रहे. वी आर गेटिंग द ट्राई टू इम्प्रूव द बीएमसी, yes and this is important. But the same time, as a citizen, yes our Mumbaikar duty, because many houses, many societies dump garbage together in garbage area. So this what we are, you and me, we are staying in Mumbai. Once we start in morning our vehicle, yes so many places garbage के ऐसे bunch पड़े रहते हैं जो सारा mix होता है. जी उसको वो गाड़ी वाला तो हटाएगा नहीं. जी If you visit US, China or any other countries, they have their two dabbas. One is wastage, one is natural, and then they put in the garbage van. that's right. But हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ हम सिटीजन ही उसको मिक्स करके डालते हैं. उसके अलावा no doubt you said improvement is must and it's important to get it done properly, cleaning facility. I'm agreed with it. रानी द्विवेदी जी, जो आपने कहा, आई एग्री विद यू टोटली, बिल्कुल मैं आपसे तकरीबन हर चीज़ में सहमत हूँ. लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आती है. आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने चाइना का एग्जांपल दिया. चाइना तो एशियन कंट्री है भाई, हमारे साथ ही आसपास ही चाइना को तकरीबन आज़ादी मिली, हमारे आसपास ही. आज तो खैर हिंदुस्तान की अभी वो स्थिति हो गई है कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों बोलते हैं कि देयर इज ओनली वन ब्राइट स्पॉट इन द एंटायर वर्ल्ड विच इज़ इंडिया, विच इज़ फैंटास्टिक, लवली. लेकिन यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे सिंगापुर है, जैसे शंघाई है, जैसे टोक्यो है, वहाँ पर जो कॉरपोरेशन के यानी जो म्यूनिसिपैलिटी के कानून हैं इतने सख्त हैं और इतने सख्त तरीके से वो लागू होते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती सड़क पे थूकने की. दुबई में चले जाइए, वही हिंदुस्तानी, वही हमारा मुंबईकर जो दुबई में लैंड करता है, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासन में रहता है, कुछ कचरा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा. जब दुबई जाएगा, हर एक कोई दुबई जाता है, और जैसे ही उसका प्लेन लैंड करता है यहाँ दुबई के मुंबई एयरपोर्ट पे, वो सबसे पहला काम करता है रनवे के ऊपर थूकता है. मेरा ये कहना है कि यहाँ पर हमारे कानून क्या इतने सख्त नहीं होने चाहिए कि किसी की हिम्मत ना पड़े करने की. बिकॉज आई टेल यू व्हाट, ये मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ.
ये नितिन गडकरी साहब ने जब से वो सीट बेल्ट का कानून लाया, उन्होंने कहा भाई वो साइरस मिस्ट्री साहब का जो एक्सीडेंट हो गया, उनकी आकस्मिक मौत हो गई, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सीट बेल्ट ना पहनने के 1000 रुपए से ऊपर आपको फाइन लगेंगे। आज की तारीख में मैं देख रहा हूं मुंबई शहर में तकरीबन हर एक कोई सीट बेल्ट पहन रहा है। तो कानून का बहुत डर होता है। तो आपको लगता नहीं है कि कोई सख्त कानून बनने चाहिए मुंबई में भी? डेफिनेटली बनने चाहिए और बने हुए हैं। एज आई सेड राजीव जी, हम सिटीजन है, जैसे हमारे जेब से अगर पैसा जा रहा है तो हम आज सीट बेल्ट लगा रहे हैं, लेकिन कल हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमारी जान जा सकती है, इसलिए हमें सीट बेल्ट लगाना है। जी जब नितिन गडकरी जी ने वो फाइन दिखा कि नहीं तुम्हें इतना फाइन देना पड़ेगा, जी तुम्हारी गाड़ी का अगर स्पीड 100 के बजाय 101 भी चला जाएगा तो 2000 की पर्ची घर में आएगी, जी तो सिटीजन स्टार्टेड फॉलो। बट जी हम हमारे जिंदगी के लिए सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं और हमें फाइन लग रहा है तब हम सीट बेल्ट लगा रहे हैं। दुरुस्त तो बात। क्या बीइंग अ सिटीजन वी डोंट हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री? हम एक गार्बेज जैसी चीज भी अगर हम किसी के भरोसे या डाउट, इसमें रूल है, आप थूकोगे तो आपको फाइन है, आप कचरा फेंकोगे तो आपको फाइन है। फाइन है जी। फाइन है, लेकिन क्या हम इस फाइन से डरते हैं? क्या एज अ सिटीजन हम इसको खुद को चेंज करना चाहते हैं? और देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, स्वच्छ भारत अभियान आपको याद होगा तो 2014 में कुछ शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान जी हुआ था। उसके बाद कई सारे ऑटो रिक्शाज में, कई सारे टैक्सीज में गार्बेज की छोटी छोटी बक्से या पैकेट्स रखे गए। सी द पीपल अवेयर व्हेन समवन दे think that he is my leader and I have to listen him. यस So change is started, but as you said, really we need to upgrade lot, and our new generation is following that. Mostly people try to not throw anything on the road. एक बार सोचते हैं कि मैं फेंकूं कि नहीं। तो ये चेंजेस आ रहा है, बट ये चेंजेस उस हद तक आना चाहिए जहां हम हमारे शहर को साफ रख सकें। If the BJP comes to power in the BMC, will you see to it that all these laws are implemented strictly? Yeah, it's very much strictly implemented because ये एक दिन तो हमें रहना नहीं है। हम अगर जिस शहर में आज 20 साल से रह रहे हैं तो सर हमारा ये रोड भी जो है ये हमारा घर है। ये सोचकर जिस दिन हम रहने लगेंगे और हम कायदे से डरेंगे और कायदा हमारे ऊपर उतनी ही सख्ती से लगेगा, उस दिन हम जरूर इसको चेंज हो गया ऐसा सोचेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की मुंबई महानगर पे जिस दिन मेयर बैठेगा उस दिन नहीं तो आज जब देवेंद्र जी और शिंदे जी की सरकार है, इसमें भी काफी इम्प्लीमेंटेशन और काफी चेंजेस आपको मुंबई में दिखेंगे। प्रदीप जी। Rani ji, Prime Minister Modi has done fantastic where Swachh Bharat is concerned. Toilets जो 11 crore toilets उन्होंने provide कर दिया, making revolution. उन्होंने फिर हर घर जल से नल, नल से जल, ऐसे कैंपेन, बहुत बढ़िया कैंपेन शुरू किया जहां स्वच्छता भी है एंड सेल्फ सफिशिएंट भी छोटे छोटे यूनिट्स हो जाएंगे। महाराष्ट्र में और मुंबई में एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस जबरदस्त बजट निकाले, 53,000 करोड़ बीएमसी के। एसटीपी के प्राइम मिनिस्टर आके, मोदी जी आके एसटीपी के बारे में उद्घाटन किए, डिसैलिनेशन प्लान्स के बारे में बात किए, हॉस्पिटल्स के बारे में बात किए, स्वच्छता के। बट जिस प्रकार से ऑपोजिशन स्पेशली आदित्य ठाकरे एंड द कांग्रेस जस्ट अटैक, लांछन लगा रहे हैं कि ये बजट जो है बीएमसी के, इट इज अ कॉन्ट्रैक्टर्स बजट, ये किकबैक्स के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसमें ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ना एजुकेशन सेक्टर के लिए कुछ है, ना स्पोर्ट्स के लिए कुछ है। तो एसटीपी प्लांट्स के बारे में आदित्य ठाकरे उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि देखो क्या किया एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस गवर्नमेंट ने। एसटीपी लगना चाहिए था दिसंबर 2022, अब 2022 तो खत्म हो गया। अब तक एसटीपी प्राइम मिनिस्टर आके उसके बारे में बात करेंगे। डिसैलिनेशन प्लान तो 2023। तो जिस प्रकार से एनवायरनमेंट और स्वच्छता के बारे में आदित्य ठाकरे, कांग्रेस लांछन, एक्यूजेशंस लगा रहे हैं, इसका विरोध आप लोगों को कैसे सेटिस्फाई करोगे कि बीजेपी हैज डन अ गुड वर्क? देखिए सर, एसटीसी प्लांट जो आप बोल रहे हैं, वो एसटीपी प्लांट जो लगना था वो बराबर है 2022 में लगना था। वो बैठे थे ना गद्दी पे जी। अभी ये बताइए मुझे, आप और मैं अगर हमारे फैमिली के साथ किसी समुंदर पे जाते हैं ना, तो हम लोग पानी में पैर नहीं डाल सकते।
बिना फिल्टर हुआ पानी उस समुंदर में आता है जिसमें हमारे बच्चे जाके खेलते हैं, या हम जिसे हमारा मुंबई का ओशन कहते हैं. डू वी आर डूइंग जस्टिस विद दैट? आई थिंक नो. तो ये हो रहा है. आप और मैं रोज घर से बाहर निकलते हैं तो मुंबई में डेवलपमेंट दिख रहा है. मोदी जी ने जो चीजों का उद्घाटन किया वो आज मेट्रो दिख रही है. जो होने वाला है उसमें काम होते दिख रहा है. सो हम जब कुछ कर नहीं सकते तो हम क्या कर सकते हैं? हम दूसरे के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं, विच इज वेरी इजी. यू कैन सिट होम इन एक आप किसी 4 चैनल्स को बुला लो, अपने चेयर पे बैठ जाओ और चाहिए वो बोलते रहो. That's not called a development. You are also there 2.5 year in government. एक भी काम बता दे सर कि ये काम हमने चालू किया और पूरा किया. ऐसा नहीं होता है. But one thing is there, रानी जी, एक चीज जरूर है, ये मैं कहना चाहूंगा. At the moment, this city, Mumbai, is very lucky to have Mr. Iqbal Singh Chahal as the BMC commissioner. He's been a wonderful man. He's done a wonderful job. And as far as Mr. Devendra Fadnavis is concerned, his commitment to Mumbai is almost as much as Mr. Modi's. और ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मोदी साहब ने 2015-2016 में वादा किया था. क्या वादा किया था? कि मुंबई शहर के लिए वो हर चीज करेंगे जो मुमकिन हो ताकि मुंबई शहर की तुलना न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन, पेरिस, सिंगापुर से की जाए. एंड ही इज एक्चुअली डूइंग इट एंड वी कैन सी द रिजल्ट्स. लुक एट द कोस्टल रोड, लुक एट द वेरियस कनेक्टर्स व्हिच हैव बीन मेड. गोरेगांव मुलुंड का कनेक्टर बन रहा है. 12 के 14, I think 14 lines now, right? 14 lines, yes. 14 metro lines have already been sanctioned. Vande Bharat trains. I mean, this is absolutely fantastic. I think as soon as the coastal road actually gets completed, I think it's due for completion this year. It'll be fantastic. The other thing is, which may not be within the city, but it is going to impact the city, which is the Mumbai-Delhi superhighway, which is absolutely fantastic. But the only thing, the other question which arises over here is, these are big ticket projects. These are huge projects, humongous projects, which reinforce the image of Mumbai as a cosmopolitan city with international standards. The problem is, in terms of the slums that we have, 65% of Mumbai is slums. 65% मुंबई जो है वो स्लम में रहता है. उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ SRA स्कीम से कुछ नहीं होने वाला. मेरा ये कहना है, और ये सजेशन जो है हम लोग ना जाने कितने सालों से दे रहे हैं. अलग अलग सरकारें जितनी भी आई हैं सबके साथ हमारी बात हुई है, उनके सामने प्रेजेंटेशन भी दी गई है. हर एक कोई मानता भी है कि जो फिलहाल जो स्लम्स हैं जिनके ऊपर SRA अभी लागू नहीं हुआ है, जिनकी रिहेबिलिटेशन अभी नहीं हुई है, जिनका पुनर्वसन नहीं हुआ है, एटलीस्ट स्लम्स में तो जो सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, सिविक फैसिलिटीज, वो तो मिल जाएं, सो दैट वहां से बीमारी ना फैले, लोगों की हालत ना खराब हो. डोंट यू थिंक वी शुड डू दैट, रानी जी? सर अभी आपने मुझे पता नहीं आपने सुना है क्या, बट जस्ट नाउ द सेम प्रोग्राम when Modi ji event was happened, yes, वहां बताया गया कि हम स्लम में क्या कर रहे हैं. हम स्लम में शौचालय बढ़ा रहे जी. जहां अगर हमें जगह नहीं है तो वहां के रूम में जो रह रहा है या जिसकी वो रूम है उसको शिफ्टिंग देकर वहां 1+1 का हम प्रोविजन कर रहे हैं. सीवरेज लाइन को प्रॉपर कर रहे हैं. उसके अलावा if you saw in slum there is a water shortage or something like, there is no place to wash the clothes and all, so we are keeping the washing center there. अभी हम वहाँ washing centers भी दे रहे हैं, सीवरेज भी क्लियर कर रहे हैं, और जहाँ हमें जगह कम पड़ रही है वहाँ से हम जगह एक्वायर करके 1+1 के टॉयलेट्स भी दे रहे हैं. So we are focused on everything where we can do best. If shifting is possible, then it will possible. If shifting is not possible, then maximum facility trying to give the people. फडणवीस जी पे जिस प्रकार से अजित पवार वगैरह अटैक एलिगेशंस लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र इज नॉट सेफ. इट स्टार्टेड विद आदित्य ठाकरे के जो कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था, देन एक लोकल MLA पर अटैक हुआ, फिर एक जर्नलिस्ट पर अटैक हो गए कोंकण में. अभी कल जितेंद्र अवार्ड जिस प्रकार से कहा कि मुझ पर अटैक होने लगा, लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स मिला है कि दे विल बी एलिमिनेटेड. तो इज देयर अ क्वेश्चन ऑन लॉ एंड ऑर्डर दैट थिंग्स आर नॉट रनिंग वेल? Devendra Fadnavis ji of the BJP, your party is running the home. How do you see that? Is there an immediate threat? Is there collapse of law and order? जिस प्रकार से अजित पवार, जितेंद्र अवार्ड, शरद पवार जी सब
आवाज उठा रहे कि something has to be done when law and order is concerned. What's wrong, Rani ji? Sir, I feel that this is a more protective Maharashtra now, as per if you ask me. हम किसी राह चलते आदमी ने अगर मेरा रीट्वीट किया है तो उसको उठा के घर में लाकर उसको मारते नहीं है पुलिस के सामने। हम साधुओं की हत्या होते हुए देखते नहीं है, और हम किसी सैनिक की आंख फोड़ देते हैं तो हाथ पे हाथ धरे नहीं रहते हैं। और अगर आप स्टेटमेंट देवेंद्र जी का सुनेंगे तो जो भी हैपनिंग होती है उस पर तुरंत इंक्वायरी बिठाई जाती है। तो ये हमें जो हमारे ऊपर कह रहे कि होम ठीक से नहीं चल रहा है, साहब आपके वक्त तो आप घर में ले जाके लोगों को मारते थे और तब भी कोई एफआईआर नहीं होती थी। अब तो तुरंत इंक्वायरी बैठती है। सो आई थिंक द बेस्ट, गोपीनाथ मुंडे जी के बाद अगर कोई बेस्ट होम मिनिस्ट्री चला रहा है तो वो देवेंद्र फडणवीस जी चला रहे हैं महाराष्ट्र। Wonderful. आम आदमी पार्टी का कहना है कि 15 करोड़ मरोल मोदी जी के आने पर ब्यूटिफिकेशन के तौर पर खर्चा किया, बीएमसी अनअकाउंटेड अनऑडिटेड, और मोदी जी के जाने के बाद ये 15 करोड़ जो एक्सपेंसेस किए ब्यूटिफिकेशन के, इट इज टोटली नल एंड वॉइड, उसका कुछ फायदा नहीं है। आज वही गंदगी वापस, वही सिवरेज वापस, वही गार्बेज वापस, वही एवरीथिंग ओवरफ्लोइंग। तो the आम आदमी पार्टी एंड द कांग्रेस इज पॉइंटिंग फिंगर्स कि ब्यूटिफिकेशन एक दिन का पीएम विजिट, ब्यूटिफिकेशन 15 करोड़ मरोल में खर्चा करने की क्या जरूरत है? हाउ डू यू गोइंग टू रिएक्ट दिस, बिकॉज यू हैव टू कन्विंस द पीपल यस इट इज जस्टिफाइड। सर ऑल ओवर मैं इसे परोल की बात नहीं करूंगी। G20 जब से हमने लीड किया है तब से आप अगर मुंबई को देखोगे तो मुंबई एक अच्छी खासी बदली हुई मुंबई दिख रही है। हर दीवार पेंट हो रही है, हर रास्ते पे लाइट्स लग रहे हैं, हर जगह वो दिख चेयर अप, यू शुड फील दैट आई एम समवेयर इन सिटी, इट्स माय होम। हम अंधेरे में पड़े थे, हमें दशा कुछ नहीं दिख रही थी। जैसे कोविड में माहौल हो गया था वैसे 2.5 साल से एक ठंडा जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं, इस तरह का माहौल था। आज मुंबई में ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, न केवल मरोल में, तो आप दहीसर तक सर आप आ जाइए, या वहां यहाँ से आप चर्चगेट बीटी तक चले जाइए, सीएसटी तक चले जाइए, हर जगह आपको एक नई तरह की एनर्जी, क्लीनिंगनेस, वो जो वॉल गंदी हो गई है उस पे आर्ट करके उसको साफ करना, ये सारी गतिविधियां काफी हद तक बड़े पैमाने पे चल रही है। तब तो हुआ ही है, लेकिन अब भी वो कंटिन्यूएशन चल रहा है। हमें बताइए, आपको जब गंदी मुंबई दिख रही थी तब तो आप पूछने नहीं आए। आम आदमी पार्टी से ही पूछती हूँ, झाड़ू लेकर आप निकलते हो, साफ क्या करते हो? तो अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसको वेलकम करना चाहिए। हर चीज पे गलत इल्जाम लगाना या भ्रष्टाचार कहना, ये बोलना आसान है, अस्तित्व में उतर के काम करना चाहिए सर। रानी जी, एक बहुत बड़ा दूसरा एलिगेशन जो आम आदमी पार्टी का है कि व्हाट इज बीजेपी प्लान विद एजुकेशन सेक्टर इज कंसर्न्ड। बीएमसी में उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल देखिए आप, दिल्ली मॉडल में 16 लाख लोग जो बच्चे हैं वो पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। मुंबई बीएमसी में इट हैज डिप्ड टू 2 lakhs इन द बीएमसी स्कूल्स, 2 लाख से कम धीरे धीरे हो रहा है। तो दे से दे गॉट अ प्लान for converting BMC schools into a fantastic Delhi model schools. What has the BJP got? Education. Because उनका कहना है कि जो 53,000 करोड़ BMC बजट अभी आपने इकबाल चहल जी ने जिस प्रकार से कहा, nothing is there for education. Education के लिए घटा है। तो आप कैसे स्कूल्स बनाओगे? कैसे वो स्कूल बच्चों को वापस बीएमसी स्कूल्स में लेके आएंगे? कैसे बीएमसी एज एन एजुकेशन सेक्टर उसको बढ़ाएंगे? What is BJP's plans, रानी जी? See, once a BJP in Mahanagar Palika, 100% we will do the much better plans for education in BMC schools, as well as whatever activities left which is not fulfilled and why the kids are going other schools or private schools, उस पे भी मंथन हो रहा है। और उसको अच्छा अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, उसमें और क्या दे सकते हैं, उसमें क्या हम स्किल कर सकते हैं, उसे कितने स्किल्ड लेवल पे हम इम्प्रूव करके उसमें नई एक्टिविटीज, नए कोर्सेस ला सकते हैं, कौन सा बोर्ड देने से हमें ज्यादा प्लस पॉइंट होगा, महाराष्ट्र बोर्ड में और क्या सब्जेक्ट्स ऐड करने होंगे, हमें उन्हें क्या देंगे जिससे हमारे पास बच्चा है, और स्कूल का एनवायरनमेंट क्या होगा, स्कूल क्लासेस कैसे होंगे, इस पे सब पे अपडेटेड पॉलिसी
जरूर जल्द ही जल्द आपके सामने आएंगे. Wonderful. बेघर मुक्त महाराष्ट्र फडणवीस जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है. फैंटास्टिक. उन्होंने Yes. कहा 5 लाख घर हम लोग बनाएंगे विद इन 100 days एंड प्रॉब्ली द 100 days आर गेटिंग ओवर ऑन 31st March. रानी जी, इट्स अ ग्रेट चैलेंज. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी सपना था हर सर के ऊपर छत होना चाहिए. फडणवीस जी भी यहाँ पर एकदम जबरदस्त बेघर मुक्त महाराष्ट्र, तो एक जबरदस्त स्लोगन था. But Mr. Modi has delivered. Yeah, Three Mr. crore houses. Mr. They've Modi has already delivered. got, Yes, yes. But फडणवीस जी एक जबरदस्त टारगेट रखे थे, considering that he has just taken over about few months back. How is he going to achieve the target, madam? 31st March का जो टारगेट है कि करीबन 5 लाख घर मैं बनाऊंगा गरीबों के लिए. It's a beautiful concept, a fantastic idea, very goal driven. इसमें टोटल महाराष्ट्र के जो फेस है वो चेंज हो जाएगा. वे गरीब का घर है, अफोर्डेबल होम्स आर कंसर्न. रानी जी, एनी अपडेट अबाउट दैट? So many places work, some places work are done, some places work in progress. अगर आप देखोगे तो धारावी के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, maybe it will start somehow, some timeline. And you talk about Fadnavis ji dream. Yes, he has a dream that everyone should get the home, everyone should get the moral facility what is required, like रोटी कपड़ा मकान और अब कह सकते हैं सेहत. इसलिए बाला साहब ठाकरे आप देखेंगे रुग्णालय भी आ रहे हैं, जी. घरों के ऊपर भी कंसंट्रेशन हो रहा है, जॉब क्रिएशन की भी कोशिश चल रही है. और जब इतना सब होता है तब कहीं ना कहीं एक तबके में हमको चेंजेस दिखता है, which I and you for fair eyes we can able to see. Right, and we must say that as far as Gujarat is concerned, in terms of housing for the poor, I think possibly the only state that has actually delivered on free housing for the poor is Gujarat, where they have achieved 100% of their targets, which is fantastic. So if they can do it, I'm sure we can too. I think that same Yes, thing can we be can done in do it. Maharashtra We as can well, which would be fantastic. Now, but the question that Pradeep ji asked, that's a very fundamental question. There are two aspects to this question. One is, you already have a huge infrastructure in terms of schools. BMC के बहुत स्कूल है. I'm not sure of the exact number, but I think you have around 850 or 900 schools already in existence in Mumbai. Their buildings are pretty bad, dilapidated हैं, काफी हालत खस्ता है. उनकी तरफ कोई ज़्यादातर दिखता नहीं है, कुछ नहीं करता है. टीचर्स भी नहीं हैं आज की तारीख में. और कई जगह तो ऐसे हैं कि पिछले 25 साल से क्या हुआ है कि कई जगह तो टीचर्स ऑन पेपर हैं. सैलरी जाती है लेकिन पढ़ाने वाला कोई वहाँ पे है नहीं. तो वहाँ पर अगर आप ज़रा वहाँ पर अपना ध्यान आकर्षित करें और वहाँ पर अगर आप अच्छी तरह उस चीज़ को देखें, because I know for a fact that you are very interested in education yourself. You know, it could be a huge challenge, but it is also a great opportunity where you could actually provide quality education for the poor Mumbaikar. That'd be fantastic. Number two, we have been working on this since 1999 when both Pradeep and I were in the Hinduja group, where we found that the BMC dispensaries, there are lots and lots of BMC health centers already in existence, जिनको dispensary कहा जाता है, they are also not functioning properly. Now, will the BJP, do you already have a plan? Has the BJP worked out a plan as to what they're going to do to transform these places? क्योंकि एक चीज याद रखिए, which is okay, the Shiv Sena was in power for 25 years. At least 20 of those 25 years you were with them in totality. लेकिन आज भी आपके साथ जो लोग हैं सरकार में, वो पुराने शिवसेना की हैं. They are quite used to that way of working. You know exactly what I am talking about. So, ma'am, how will you change that? रानी जी, उसको आप बदलेंगे कैसे? उसमें एक attitudinal change आना पड़ेगा. How will you manage that? देखिए, once Honorable Prime Minister Narendra Modi is running country, then every state has to follow what his dream is and working style. Honorable Devendra Fadnavis ji and Eknath Shinde ji doing their job very well. Change and development is a motto of our government. It's very important. उसमें सबसे ज्यादा मैंने आपसे कहा कि जरूरतें जो इंसान की है वो क्लिनिक है, जो आपने कहा, जो अपग्रेडेड होने चाहिए, 100% अपग्रेडेड होने चाहिए. उसमें छोटा सा लैब होना चाहिए, उसमें इमरजेंसी की सारी सर्विसेज होनी चाहिए, एक फिजिशियन होना चाहिए एटलीस्ट. And then, as you said, the schools should be proper.
So Yes. some of schools, if you can go and see today also, it's running in slum area because, as you said, 65% slums residents here in Mumbai. So if we give the quality of education, if my child or other child or poor child is child, he has the right to get good education, and that our promise and commitment to give him. यहाँ So पर एक BMC schools के ऊपर there is an old report which was I think the report was authorized by the BJP सेना गवर्नमेंट, अगर मुझे याद है तो 95 90 to 99 जो सेना बीजेपी की सरकार चली थी, उसी के दौरान ये रिपोर्ट, ये इंक्वायरी बिठाई गई थी कि भाई बीएमसी स्कूल्स का भी हाल क्या है। उस वक्त ये पाया गया था कि बीएमसी स्कूल्स में स्पेशली गर्ल्स के लिए द टॉयलेट्स इन द स्कूल्स आर इन द मोस्ट हॉरिबल कंडीशन। पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, जिसकी वजह से बहुत लड़कियां स्कूल जाती नहीं हैं, बिकॉज द होल डे दे कांट गो टू द टॉयलेट। नाउ मैम, have you looked at this? Is the BJP looking at this? Because the condition now, to my knowledge, has only deteriorated. It has come down. It has not improved. Rani ji. Sir, what I said, once a BMC, no doubt, it's working now under state government, and BMC have their independent commissioner. Yes. After elected body, once a BJP will be in power. Yes, मैं ma'am. आपको कह रही हूँ सर, हमारी जी। एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी होगी। हमारे स्कूल में जो चाहिए, हमारे क्लासरूम्स कैसे होंगे, हमारे टॉयलेट्स कैसे होंगे, बिकॉज शौचालय ये सबसे बड़ा मुद्दा लेकर हम चले हैं। जी। हमने जब गांव-गांव में शौचालय दिया है, तो ये तो मेट्रो मुंबई है। जी। So you are absolutely right. Female need this rights to Yes. sitting 8 to 9 hours. She has to be get all these facilities which required. Upgraded classroom, upgraded school आपको मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट मैं शिंदे फडणवीस जी की सरकार में नहीं रख सकती। 100% वो होगा। And in terms of sports, ma'am, you are a sportswoman yourself. Yeah. Sports में क्या करने वाले हम लोग? राजीव जी, आप अगर देख रहे होंगे तो जी। every school have maximum school having their own grounds which belongs to BMC. जी। And soon it will be developed like I cannot say Olympic size, but zone wise everyone should get a proper grounds which they required, Yes. like synthetic track, running track, then somewhere football ground, kabaddi, kind of things which can be built in that ground, because ground sizes are very big if you saw. Yes. All BMC But in a grounds bad are- state. But they're in a bad state right now. Yes. सर बता तो रही हूँ, 25 साल से तो अब जनता जानती है। लेकिन आप अगर बोरीवली आ जाते हैं, आप अगर लीलावती के सामने आशीष शेलार जी ने डेवलप किया माड़ा का वो ग्राउंड देखते हैं, या आप गोपाल शेट्टी जी के एरिया में आ जाते हैं, तो बोरीवली जैसी जगह एक भी एनक्रोचमेंट नहीं हुआ है। जी। सारे ग्राउंड्स उन्होंने प्रॉपरली डेवलप किए हैं। आई रिक्वेस्ट यू, इफ We've seen एनी it. ऑफ योर टीम शुड बी विजिट बोरीवली, बांद्रा का लीलावती के सामने का आशीष शेलार जी का डेवलप किया हुआ ग्राउंड, जी। इज ऑल आर लाइक ओलंपिक साइजेस ग्राउंड व्हिच आज जनप्रतिनिधि इज डूइंग। वो अगर पावर में है नहीं है तो भी वो अपने मैनेजमेंट से उनको डेवलप कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और तो आप सोचिए जब और मैम, आप अपने स्पोर्ट के लिए क्या करने वाली हैं? आशीष इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, वी नो आशीष शेलार जी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, एंड गोपाल शेट्टी साहब की तो मतलब बात ही कुछ और है। आज तक जिंदगी में एक चुनाव नहीं हारे वो, भले कॉर्पोरेशन हारे। का चुनाव हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, that man has never lost an election, never. नेवर लॉस्ट। Yeah, he and he's fantastic. He's always available to the people and he's right there. जब मुंबई में Yeah. होते हैं, वहीं पर अपने दफ्तर में होते हैं और हर एक से मिलते हैं। मैंने पहली बार एक ऐसा शख्स देखा है, वो कभी भी मना नहीं करता। जिंदगी में आज तक उन्होंने मना नहीं किया किसी से मिलने के लिए। He's a brilliant Yeah. man. लेकिन आप अपने Yeah. स्पोर्ट के बारे में बात करें, हॉकी के बारे में। मुंबई में देखिए, हॉकी कैसे हॉकी- डेवलप होगी मैडम? एक जमाना था, मुंबई यूज्ड टू बी अ ग्रेट पावर इन हॉकी। आज की तारीख में बच्चे जो हैं क्रिकेट के चक्कर में हॉकी खेलना भूल गए हैं। सर हॉकी का महाराष्ट्र एसोसिएशन का, मुंबई एसोसिएशन का ग्राउंड जो आप चर्चगेट में देख रहे हैं, सून यू विल सी द चेंज इन दैट। इवन वी आर प्लानिंग टू गेट रेलवे ग्राउंड शुड बी गेट टर्फ प्रॉपरली, हॉकी टर्फ। जी। Then sports authority of already having the turf that also old, it's also going to replace.
राजीव जी, मैं कह रही हूँ कि आपको ये 3 साल में कम से कम हॉकी के 3 से 4 टर्फ देखने मिलेंगे मुंबई में. 3 से 4 और टर्फ जी. या उसके And अलावा which is हम terrible in my opinion. By the way, I have a different opinion on this. Rightfully speaking, the Indian सर Hockey अभी Federation, देखिए with ना, the government of India, we should campaign to go back to grass. और रानी जी, आपको इसके लिए बीएमसी का जो बजट है उसको बढ़ाना पड़ेगा. आज के तारीख में स्पोर्ट्स के लिए सिर्फ 50 लाख अलॉट किए हैं सर, 53,000 हेड ओपन हो गया है ना, 53,000 करोड़ के हिसाब से. जी, आप कुछ बोल रही थी, रानी जी बताइए. once the sports head amount is open, जी. we can increase the money as per our requirements, sir. Yes, And absolutely. आप But don't you देखो think we should grass- go back to grass, madam? Don't you think we should go back to grass? ये यूरोपियन पावर्स ने और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने सबने ये टर्फ ला करके हिंदुस्तान का जो इतना बड़ा टैलेंट था हॉकी में, उस पूरे के पूरे को खत्म कर दिया वन स्ट्रोक में. जी. सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट. मैं जब नागपुर से मुंबई आई थी तो मैं टर्फ पे गिर रही थी, जी. वही चर्च गेट के. जी. बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू प्ले ऑन टर्फ. Correct. आई वाज प्लेइंग ऑन चर्ट. Yes. So अभी जब ओलंपिक के टूर्नामेंट टर्फ पे होते हैं, so we don't have any option. We have to play and do the practice. Yes, absolutely. But in villages still today, mud grounds and grass ground are using Yes. people. Yes. But for Mumbai, I feel our players should be know how to play on turf. We should not lacking behind because we don't have turf. So already Mumbai having 2 turf. उसको हमें Ma'am, दोबारा नया लगाना है. रानी जी, you used to play center half in the Indian national Yes. hockey team. Yeah. मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ. एक शहर है एम्स्टरडैम, हॉलैंड में. वहां पर आज की तारीख में 550 टर्फ्स हैं, सिर्फ एक शहर में. 550 टर्फ्स. But So we how, start with that. so how can we can compete start with them, ma'am? So, ऐसा है, we have a हमें आपने कभी सुना था चंद्रपुर में हॉकी का टर्फ था पहले? हाँ, आपसे सुना हमने, आपसे सुना. मुझसे ही सुना ना, जी. उससे पहले नहीं सुना सर. उससे पहले कभी नहीं सुना. I agree with you. Yes, हॉकी के 3 से 4 टर्फ वहाँ है. जी. So we are trying to do our best. ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन I promise you, in Maharashtra you can see one day 100 hockey turf will be here. Fantastic. National game, sir. National game. We have to alive with that game. Wonderful, Yeah. ma'am. Wonderful. Yeah. रानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. Wonderful talking to you. And the best news for me is you have said 100 turfs one day. Yes. कब होगा Fantastic. मालूम नहीं है, लेकिन the very fact that you want something like this to happen is amazing. Absolutely wonderful. The Wonderful intention talking is to you. absolutely right. रानी द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेशन नाउ में आने के लिए और हम लोगों से बात करने के लिए. आपको नमस्कार और वंदे Thank मातरम. you so much. Vande Mataram. Vande Mataram. Thank you so much. That's wonderful. That's really wonderful. 100 Fantastic. turfs Yes, yes. right here in Mumbai. Wow. A vision. You need a vision. A leader has to have a vision. And if the vision is there, everything I falls in tell place. you- 100 turf in Maharashtra. Oh, Maharashtra, not in Mumbai alone. Okay. Mumbai don't have this much place, sir. जगह इतनी नहीं है. Anyway, So, thank you, man. 100 But the thought in itself is Maharashtra. fantastic. But the thought is itself fantastic. is absolutely But the fantastic. thought is fantastic. Why not 100 turfs in Mumbai? We can actually get 100 turfs in Mumbai. All the BMC schools can also have a hockey turf. At least 50 can be made. And we You know see a lot about of hockey players will be Yeah, so yeah. happy to know Oh, yes. somebody's at least thinking about this Oh thing. yes, oh yes. We know another centre half, Joachim Carvalho. Yes. You know, Melvin, all Jude Felix, all the other guys. Yes, yes. I mean, they would be so happy. They would be just so happy to hear this. Fantastic. Thank you so much, man. Thank you. Fantastic. I mean, the entire concept of Just Prakash se dekhoge. Yes. They are, every leader, the young Turks Yes. are full of ideas, full of enthusiasm, and And probably why not? driven by the Prime Minister. And I tell you what I'm impressed by. What I'm impressed by is the fact that why not? The fact is, nobody's phased anymore by the fact that, you know, European country, 500 टर्फ हैं एक ही शहर में, तो क्या हो गया यार? हम भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. yes. ये नया हिंदुस्तान है साहब. Sir, we कुछ have भी हो bought the सकता है. highest number of Airbus aircrafts. My goodness. We've just Look, ordered. Yes, yes, yes. The biggest order ever Biggest in order. history. 250 aircrafts. 250 plus 220. Yes, and then you talk about 250 Airbus and 220 Boeing aircraft, right? and the whole. In fact, you got the French president Yes. praising Mr. Modi, the UK Prime Minister praising Mr. Modi. Because says, do remember, Airbus also "You are has going to Airbus also revive has the entire." Airbus also has British Bilkul. shares. Airbus also has British shares. The British Yes. government has also got. They are saying you're going to revive. Both the countries Yes. are going to boom. The economy is going to boom. Yep. There's going to be employment opportunities, trade, commerce, and and business is going to boom. and you got both the United States,
France and UK in your corner. Yes. Because of Airbus. And Germany. Don't forget that. That'd be fantastic. And all the other ancillary and you can companies. see only India in the midst of absolute, क्या बोलते हैं, dimness. There's nothing enthusiastic in the whole world happening where economy is concerned. Yes. You're talking about recession everywhere, and a boom. India says, yeah, we're buying so much. We're buying 250 Airbuses and various other aircraft. And from 220 all these Boeing places. aircraft. Yes. Look at the way we are That is doing it. 470 aircraft. We are creating positive sentiments in the whole Biggest deal. world. Sir, the biggest deal ever. Yes. Biggest aviation Bilkul. deal ever in history. Yes. Which is fantastic. Which is absolutely fantastic. Which means it's going to be a huge boost for the aviation sector, which everybody had thought was more or less dead. Now, But I definitely know that Mr. Modi, when he does this, he has a plan for it. yes, Unlike absolutely. when Praful Patel had ordered this, he had half the aircrafts lying there without flying. I mean, Not we flying had- at all. Yes, we had files and files of the Air India Union people walking with the files. Why, if you ordered the aircrafts or wet lease them, or whatever, it's just lying idle on the Yes. on the airports. What do we do with them? What I are you- hope what are the you gonna do entire with them? That's and right. since Tata's has taken over, definitely And now- we believe that they are going to do a good Pradeep job. ji, as I said, these are big ticket projects. Yes. That's what I was trying to tell everybody. That's what I tried to tell everybody from the BJP. ये जो big ticket projects जो है ना, मतलब 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 6,000 करोड़, 3,000 करोड़, this is fine. This is okay. लेकिन जो बेचारा छोटा सा आदमी है, स्लम में रहता है, लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, उसके लिए क्या? सबसे बड़ी बात यह है, उसके लिए उसका बच्चा स्कूल चले जाए, अच्छे स्कूल में जाए, उसको अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी पढ़ाई नहीं मिले, उसको आगे जा करके उसको अवसर मिले, बाहर जाने का, विदेश जाने का, MBA करने का, IIT में जाने का, ये इन सब चीज़ों के बारे में कौन सोचेगा? और इस वक्त जो सोच रहा है वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. इज द आम आदमी पार्टी दैट इज एक्चुअली looking at Thinking in these terms. thinking in these terms. And by the way, this is what I would like to ask our friend Mr. Sanjay Bedia. संजय बेडिया जी शायद हमारे साथ हैं. संजय बेडिया जी नमस्कार. नमस्कार भाई. नमस्कार संजय बेडिया जी. राजीव बजाज बोल रहा हूँ RKB और मेरे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी. आप हैं नेशन नाउ पर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन. नमस्कार. संजय बेडिया जी वंदे मातरम. वंदे मातरम भैया. संजय बेडिया जी, आप सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही नहीं हैं. आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं. आप मीडिया से भी कनेक्टेड हैं, बॉलीवुड से भी कनेक्टेड हैं, टेलीविजन सीरियल्स वगैरह से भी कनेक्टेड हैं. मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुंबई जो है हमारा मूवीज का, टेलीविजन का और थिएटर का सेंटर है. आज तक कभी किसी भी सरकार ने मुंबई के बारे में ऐसा नहीं सोचा है कि यहाँ पर बॉलीवुड को लेकर के हमें और क्या क्या फैसिलिटीज देनी चाहिए और किस तरीके से इसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आकर के फिल्म बनाएं. यहाँ के जो फिल्म मेकर्स हैं उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलें, यहाँ के जो टेलीविजन सीरियल्स बनाते हैं उन लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिलें. और हम लोग क्या कर सकते हैं थिएटर को बढ़ावा देने के लिए? संजय बेडिया जी, क्या आम आदमी पार्टी इस विषय में कुछ सोच रही है बॉलीवुड को लेकर के या फिल्मों को लेकर के? राजीव भैया, प्रदीप भाई, आम आदमी पार्टी हर विषय पर सोचती है जी. पर हमारे बेसिक विषय जो 5 हैं वो तो है ही. पर हम भविष्य में सत्ता में आएंगे जी. अगर महाराष्ट्र हमारे हाथ में आती है, सत्ता आती है जी. तो हम जरूर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचेंगे. मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ. जी. कई लाख वर्कर जी. इसमें काम कर रहे हैं. जी. अगर एक एल्बम बनती है या एक फिल्म बनती है तो कम से कम 100 परिवारों को 2 महीने का राशन, भोजन, खाना पीना मिल जाता है. जी. आप कोई भी सरकार आज तक महाराष्ट्र में आई है, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कतई नहीं सोचा है. इवन कोविड के काल में भी फिल्म इंडस्ट्री के जो छोटे मोटे लाइटमैन वर्कर, देखिए फिल्म यूनिट एक हीरो हीरोइन की होती है, एक DOP डायरेक्टर, बस. इसके अलावा जो नीचे काम करने वाले सब वर्कर हैं इसके अंदर, और लाखों वर्कर लोग कोविड काल के अंदर यहाँ से चले गए. मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता. ऐसे लोगों ने
बड़े बड़े जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन संस्थाओं की मदद की, और जो आर्टिस्ट हैं जी। वह भी इतने परेशान थे, जी। मतलब उनको पास भी 2 टाइम के भोजन नहीं था। मेरे पास कई लोगों के फोन आए, मैं किसी का नाम ऑन चैनल पर लूंगा नहीं, पर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई सरकार ने आज तक सोचा नहीं है, और हम जब आएंगे तो जरूर सोचेंगे और जरूर करेंगे। यहां पर एक और चीज आपसे जानना चाहता हूं कि आप इंडिविजुअली, देखिए साहब, आप मुंबईकर भी हैं, आप अब तो आम आदमी पार्टी में हैं, लेकिन एज अ मुंबईकर एंड एज अ पर्सन कनेक्टेड विद द मीडिया एंड कनेक्टेड विद बॉलीवुड, आप क्या चाहेंगे अगर मान लीजिए आज कल आपकी सरकार आ जाती है? हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन ये सोच सकता था उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी बनाई 10 साल पहले? हर एक कोई हंसता था, हर एक कोई हंसता था कि ये लोग क्या करेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद दूसरी बार बने, तीसरी बार बने। पंजाब में लोग मजाक उड़ाया करते थे कि ये लोग क्या करेंगे। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आप बोल रहे हैं ना कि एक दिन हो सकता है कि अगर हम महाराष्ट्र में सरकार में आ गए, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपसे ये भारत का लोकतंत्र है साहब, जनतंत्र है भारत का। इस भारत के जनतंत्र में कोई भी कुछ भी कर सकता है। एक चाय बनाने वाला शख्स जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है महाराष्ट्र का, तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या चाहेंगे अगर मान लीजिए आज आपकी सरकार आ गई? आप क्या चाहेंगे कि आपका जो भी चीफ मिनिस्टर होगा महाराष्ट्र का, वो बॉलीवुड के लिए क्या करे? आप जैसे लोगों के लिए, जो छोटे छोटे स्टूडियो ओनर्स हैं, उनके लिए क्या करे? उनको क्या क्या डिफिकल्टी आती है, कहां कहां से उनको परेशानी आती है? संजय भेड़िया जी। बहुत से इस विषय के अंदर बहुत काम करने की जरूरत है। ये एक ऐसा सेक्टर है जी। सबसे पहले राजीव भाई, यहाँ पर जगह जिनकी भी है जी। उनको कम से कम, आप देखिए पावरलूम सेक्टर में चले जाइए, जी। इलेक्ट्रिक सिटी के अंदर सबके पास सब्सिडी है, सब्सिडी हर है। कारखाना जो चला रहा है उसके पास सब्सिडी है, जी। पर कोई भी स्टूडियो मालिक के पास में सब्सिडी नहीं है। करेक्ट। आप लोगों की इतनी तकलीफ है, अगर लोग बाहर से, मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर हमारा सीएम बनता है तो हम एक ऐसी विंग बनाएंगे जो बाहर से, मुंबई के बाहर से जो आर्टिस्ट काम करने आते हैं, हम उनको सबसे पहले एक कार्ड देंगे। वो कार्ड ऐसा है कि वो जेन्युइन प्रोड्यूसर के पास जाए और जेन्युइन डायरेक्टर के पास जाए। हमारे इंडस्ट्री में कुछ गंदे लोग भी हैं जिनके कारण बहुत सी समस्याएं खड़ी होती है। वो समस्याओं को भी हम कैसे रोकें, उसके ऊपर हम पूरा 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 ध्यान रखेंगे राजीव भाई जी। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। और अभी आपने कोविड की बात करी, प्रदीप जी, लेट मी फिनिश विद बॉलीवुड। ओके। ये अभी आपने कोविड की बात करी। कोविड के दौरान मुझे याद है, आपको तो खैर याद होना लाजमी है, आप तो जुड़े हुए हैं, मुझे याद है, और इस वक्त हमारे साथ हैं संजय भेड़िया जी। मुझे याद है वो बेचारे एक्स्ट्राज, वो बेचारे जिनको छोटे छोटे रोल मिलते थे, वो बेचारे टेक्नीशियन जो असिस्टेंट हुआ करते थे, अटेंडेंट हुआ करते थे, वो लाइटमैन हुआ करते थे, कैमरामैन के असिस्टेंट हुआ करते थे, उन बेचारों के पास खाने तक को पैसा नहीं था। रेंट देने की बात तो दूर छोड़िए, कर्जा नहीं था, हालत खराब थी, मतलब मकान का कर्जा नहीं दे पा रहे थे वो लोग। ये हालत, मकान का किराया, कर्जे की तो बात दूर है, मतलब के, और जिन लोगों से जिनका उनके साथ हफ्ता चलता था भाई, पान वाले से, राशन वाले से, बाकी सबसे, सब लोगों ने बंद कर दिया। आज क्या स्थिति है सर, ये बताएं संजय भेड़िया जी, क्योंकि बहुत लोग वापस आ गए हैं। जो उनका लॉस हुआ 2 साल का, उससे तो वो बेचारे रिकवर कर नहीं पाएंगे, उनमें से बहुत लोग बर्बाद भी हो गए। इस वक्त क्या स्थिति है संजय जी? इस पर भी, इस समय फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति बहुत ही नाजुक राजीव भाई है। जो लोग गए थे उसमें 100% लोग वापस नहीं आए जी। जो छोटे प्रोडक्शन हाउस थे जी, वो अभी तक फुल फ्लैश स्टार्ट नहीं हुए हैं जी। जो एड फिल्मों के प्रोडक्शन हाउस थे वो भी अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि आज उनके पास में पैसा ही नहीं है। अगर कुछ फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में चल रहा है तो बड़ी फिल्में, ये 5 से 7 एक्टर की बड़ी फिल्में या बड़े प्रोड्यूसर की फिल्में और टीवी सीरियल्स की शूट के अलावा कोई शूट मुंबई के अंदर हो नहीं रहा है। लोग, कम बजट का जो प्रोड्यूसर है वो बाहर जाता है, वो आउटसाइड
ओपन लोकेशन देखता है और वहां शूट करता है। लोग क्रू है नहीं और क्रू की आने की ताकत है नहीं, क्योंकि उसके पास में श्योरिटी नहीं है कि वह मुंबई आएगा और उसे काम मिलेगा। इवन बहुत सारे स्टूडियोज, बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर आज भी घर में बैठे हुए हैं राजीव भाई। Right. संजय भेड़िया जी, इसका जो गए हैं और स्पेशली जो यूपी वगैरह में गए हैं, क्या वहां योगी आदित्यनाथ जी ने एक जबरदस्त वातावरण बनाया है? इंडस्ट्री है, बॉलीवुड टाइप जो बोलते हैं प्रोडक्शन के लिए और सिनेमा के लिए, जिस प्रकार से फैसिलिटीज वहां पर दे रहे, बॉलीवुड से भी अच्छा फैसिलिटीज नोएडा वोएडा पे डेवलप कर दिया है। क्या ये एक कारण है कि वहां जो गए हैं, यहाँ से गए हैं लोग, वापस नहीं आ रहे? बिकॉज Mr. Yogi Adityanath has increased the standard of everything out there in Uttar Pradesh. He is asking and he is grooming, he is luring people to come out from Bollywood and come and do business in Uttar Pradesh, Noida. क्या एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर बहुत प्रोएक्टिव है और पूरे यहाँ के बिजनेस वहां पर लेके जाने, जैसे शिवसेना का एलिगेशंस यहाँ पर थे कि Mr. Yogi Adityanath is going to take the entire business Bollywood out from here and establish it in Noida. क्या ये एक बहुत बड़ा वजह है आपको लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो योगी आदित्यनाथ प्रोवाइड किए हैं, it is as good or more comparable to Mumbai? प्रदीप भाई, ये हाथी के दांत है, दिखाने के ओर है और खाने के ओर है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने सिर्फ एक बड़ी हम स्टूडियोज बनाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे और उसका चेयरमैन राजू श्रीवास्तव जी को बना दिया। राजू मुझे हमेशा कहते थे, आज वो नहीं है इस दुनिया में, राजू मुझे कहते थे कि योगी ने तो मुझे चेयरमैन बना दिया, अब यहाँ मुझे फिल्म सिटी बनानी है, बनाऊं कैसे? तो वो राजू ने इतना प्रयत्न किया, वो फिल्म सिटी बनाने के लिए इतना प्रयत्न किया, यहाँ के प्रोड्यूसर्स वगैरह को भी लेकर गए, लोगों से मिलाए, लोग सीएम से मीटिंग हुई, पर यह इतना संभव नहीं है कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री उठकर उत्तर प्रदेश चली जाए और उत्तर प्रदेश जाने के बाद लोग यहाँ से शूट करने उत्तर प्रदेश जाएं। तो ये मोदी के योगी जी के तो ढकोसले हैं, ये सारे स्टेट कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं जी, ठीक है, ये सारे सब्सिडी से कोई फिल्म नहीं बनती और सारी सब्सिडी से कोई फिल्म मेकरों का कोई भला होने वाला नहीं है। योगी जी ने तो सिर्फ हाथी के दांत दिखाए हैं। और राजू, मैं आज आपको एक बहुत हकीकत की बात कहता हूँ, राजू श्रीवास्तव उस काम को लेकर इतने प्रेशर में थे, वो मुझे हमेशा कहते थे कि संजय भैया क्या करें इसके लिए। तो मैंने कहा कि आप जाके रिजाइन दे दो या उनको बोलो कि सारे फिल्म इंडस्ट्री को आप जमा करें, मेरे से जमा नहीं होगा। एक जमा करने की और फाइनेंस लाने की सब उस पर जवाबदारी योगी जी ने डाल दी और उससे इतना प्रेशर हुआ कि आज वो हमारे बीच में नहीं है राजीव भाई, प्रदीप भाई जी। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनको यूपी के फिल्म सिटी का उनको चेयरमैन बना दिया गया, राजू श्रीवास्तव जी को, वो बहुत बड़ा दबाव पड़ गया, मानसिक दबाव पड़ गया उनके सर के ऊपर। Is that what you're saying? But that is terrible. That is absolutely terrible. लेकिन आप ये बताएं सर, क्या है कि क्रिटिसिज्म जो आता है बॉलीवुड के खिलाफ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के खिलाफ हर जगह से ये क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया। क्या कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री कर्नाटक में है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री जो तमिलनाडु में है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री जो है वो केरल में है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री वो हैदराबाद में है, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वो बॉम्बे में क्यों है भाई? वो यूपी में होनी चाहिए या बिहार में होनी चाहिए। इस किस्म की बातें चली। तो क्या कभी ऐसा होगा कि मुंबई शहर से बॉलीवुड उठ करके यूपी या बिहार चले जाएगा? बताएं प्रदीप भाई। मैंने पहले भी कहा ये असंभव है जी। मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री उठकर चली जाए। आप फिल्म के सेट बना दोगे, वहां प्रोड्यूसर कहां से लाओगे, वहां टेक्नीशियन कहां से लाओगे? जो सुविधा यहाँ शाहरुख खान क्या अपनी ऑफिस उत्तर प्रदेश में खोलेगा, सलमान खान क्या अपना बंगला उत्तर प्रदेश में ले लेगा? देखिए, शूटिंग करने के लिए, हिंदी फिल्म शूटिंग करने के लिए मुंबई सबसे अच्छी जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी हो, उसमें भी हमें दिक्कत नहीं है, पर वहां फैसिलिटीज नहीं है। इसलिए लोग आजकल मुंबई में भी शूट नहीं कर रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं।
लंदन जा रहे हैं, आप लंदन की फिल्म की अगर कोई शूट करना चाहो तो आपको 35% सब्सिडी दे रहे हैं। जी वन काउंटर सारी परमिशन मिल रही है। जी। आप 2 करोड़ रुपए अगर वहां इन्वेस्ट करते हो तो आपको 70 लाख रुपए वापिस आते हैं। जी। और वो इसकी जो पूरी प्रतिक्रिया है नरीमन पॉइंट पर, ऑफिस में जाइए लंदन वालों की, वहां अपना प्रोजेक्ट सबमिट करिए, पैसे जमा कराइए, आपको वहां लाइन प्रोड्यूसर मिल जाएगा, आपको हर चीज मिल जाएगी। क्या ये इंडिया में और कहीं संभव है? आप तो मुझे मुंबई ये में क्यों नहीं बताएं। करते? सर ये मेरा कहना ये है, आपने जो बात कही मेरे मन की बात कह दी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जहां तक मुंबई का प्रश्न है, बॉलीवुड का प्रश्न है, ये सारी सुविधाएं प्रदीप जी, Exactly. संजय भेड़िया जी, ये सारी सुविधाएं तो हमको यहां देनी चाहिए हमारे लोगों को। अरे अगर मुंबई में शूट करोगे, नासिक में करोगे, पनवेल में करोगे, पिंड में करोगे, तो तुमको 30% सब्सिडी देंगे, ये फैसिलिटीज देंगे, ये फैसिलिटीज देंगे। उसके बावजूद उसके 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 बिल्कुल विपरीत यहां तो जो बंदा बेचारा शूट करना चाहता है रोड पे, उसको तो परमिशन लेते लेते उसके बाल सफेद हो जाते हैं। संजय भेड़िया जी, आप एकदम एकदम सही कह रहे हैं और आपसे मैं 100% सहमत हूं। मुंबई की कोई भी लोकेशन, पब्लिक लोकेशन पर अगर शूट करने की एक छोटी सी परमिशन के लिए, परमिशन में तो जो पैसे लगते हैं राजीव भाई, प्रदीप भाई, वो लगते हैं, पर एनवलप भी इतना बड़ा देना पड़ता है सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज को, जब जाकर और वहां पर लोकल गुंडेज, शिवसेना के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर एक वैनिटी वैन लगती है तो आकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनको चंदा दो और उसके बाद शूट शुरू होती है। तो यहाँ पर मुंबई के अंदर जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए सरकार से, आपको सब्सिडी छोड़िए, छोटे छोटे जो, मैं आपको कहूं कि ये जो लुक लाइक वाले हैं, जो डुप्लीकेट आर्टिस्ट है, इनका जी। इतना बड़ा एसोसिएशन है, उनको कोई फैसिलिटीज नहीं है। इन्होंने कहा था, सरकार ने कहा था कि हम आर्टिस्ट लोगों को आर्टिस्ट कोटे में जगह देंगे, फ्लैट देंगे। आज मैं ऐसे आर्टिस्टों को जानता हूं जो स्लम में रहते हैं, जी। इन्हें कोई मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की, शिंदे को, ठाकरे हो, शरद पवार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, इन्हें कोई चिंता नहीं है। सिर्फ इनके शो के अंदर हीरो और हीरोइन आ जाए, बस इनका काम पूरा हो जाता है। पर जरूर भविष्य के अंदर आम आदमी पार्टी आएगी और हम फिल्म इंडस्ट्री का भी भला करेंगे। लेकिन इसका मतलब प्रदीप जी की बात ठीक है, संजय भेड़िया जी, अभी अभी जो प्रदीप जी ने कहा, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं कि मुंबई में जब इतनी ज्यादा मुश्किल है तो योगी आदित्यनाथ जी जब पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं, आपको पूरी सुविधा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और कोई माफिया नहीं है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं सिर्फ एक ही माफिया है यहाँ पे, कोई माफिया जो भी हो सीधा मुझे फोन करो। बुलडोजर बाबा है साहब, वहां पर अगर कोई हफ्ता लेने आ गया यूपी में या कुछ आ गया, उसकी खैर नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि एटलीस्ट जो मिडिल लेवल के जो प्रोड्यूसर हैं, छोटे प्रोड्यूसर जो हैं, वो तो जाएंगे उत्तर प्रदेश। इसका मतलब योगी जी सफल हो गए। संजय भेड़िया जी, राजीव भाई, मैं अगर कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर उत्तर प्रदेश जाऊं जी, और मेरे 30 लोग हो, तो उसकी ट्रैवलिंग का खर्चा कहां से आएगा? उस ट्रैवलिंग के खर्चे में तो हम एक एल्बम यहीं शूट कर लेंगे। राजीव भाई, या तो फिर हमें उसमें भी कंसेशन दे, फ्लाइट में या ट्रेन की टिकट में भी हमको कंसेशन दे, हमारे वो भी crew मिल को ले जाएगा। जाए। जिस तरीके से योगी जी चल रहे हैं मुझे लग रहा है वो भी मिल जाएगा। लेकिन वो बॉलीवुड उत्तर प्रदेश ले जाके छोड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने ठान लिया साहब। हाँ, वो शायद नहीं होगा अगर आप लोग सत्ता में आ जाते हैं यहाँ पे। जी, सत्ता में आ रहे हैं। can't hear you. I think we got a problem with the audio. मगर of- संजय of Mr. भेड़िया ने Sanjay जो Bhatia. एक्चुअली प्रॉब्लम्स हाईलाइट किया वो सही है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ वहां पर सब्सिडी देके कैसे करोगे? Production और भी- control room, can we और check भी- Mr. Bhedia's audio, और भी please? इंफ्रास्ट्रक्चर के जो खर्चे हैं उसका क्या करें? इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चे हैं, जैसे ट्रैवलिंग के जी, खर्चे हैं, वहाँ जी। रिसाइडिंग एकोमोडेशन के खर्चे हैं, इसमें कुछ होना चाहिए। जैसे No, no, उन्होंने कहा that's what Yogi is लंदन, saying. yes, No, no, but that's what Yogi Adityanath is saying. But he he's says- saying you use local talent. Yes, yes. And your main talent you bring in from Mumbai or wherever else. Just like the way you shoot in London, Yes, yes. the way you shoot in That's what he Switzerland. says. London, you just have to go there, pay your money, and and the entire setup is ready. Hope he says this kind of setup comes there. He says, Yogi ji, सिर्फ जो हाथी के दांते हैं वो दांतों के बारे में मत करें।
भेड़िया जी लेकिन संजय भेड़िया जी जो हैं, जो उन्होंने कहा, आई एडमायर हिज ऑप्टिमिज्म, जिस तरीके से वो आशावादी हैं कि एक दिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो है वो महाराष्ट्र में भी आएगी। संजय भेड़िया जी, इस आशा के पीछे तथ्य क्या हैं, वो जरा बताएं। आशा के पीछे हमारी मेहनत है भैया, हमारी मेहनत है, जो दिल्ली में हुई, जो पंजाब में हुई, और जो मुंबई में हम कर रहे हैं। जी। प्रीति शर्मा मेनन के नेतृत्व में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, और जो वादे हमने किए हैं, हम 200 यूनिट 300 यूनिट लाइट फ्री जो देंगे, ये अडानी, हम बीजेपी के जैसे नहीं है कि अडानी जी के पार्टनर बन जाए और यहाँ से पैसे मॉरिशस भेजे और मॉरिशस से वो पैसे रिटर्न होकर अडानी के ग्रुप में आए। कार्यकर्ता हमारे जेब से पैसे निकालते हैं और जेब से पैसे निकाल कर ट्रैवलिंग करते हैं और काम करते हैं। ये कोई अरबोपति खरबोपति पार्टी नहीं है, ये अडानी हमारा कोई पार्टनर नहीं है। हम कार्यकर्ता एक दूसरे के पार्टनर हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। और मुंबई में आप यकीन मानिए कि हम करीब सारी कॉर्पोरेशन तक पहुंच चुके हैं। आपको इसका निर्णय, इसका जब चुनाव होगा तो बड़ा आश्चर्यजनक निर्णय आपके सामने आएगा। क्या बात है साहब, वंडरफुल। भेड़िया जी कैसे डिफरेंशिएट, बिकॉज आज के तारीख में गहलोत जी ने राजस्थान मॉडल जो डेवलप कर दिया है, राजस्थान मॉडल भी आम आदमी पार्टी के मॉडल के अगल बगल, जिस प्रकार गैस 500 रुपया, 100 यूनिट फ्री, ट्रांसपोर्टेशन 50% वुमेन के लिए फ्री, सीनियर सिटीजन पेंशन, 30,000 बच्चों के जो गर्ल्स होगा, गर्ल्स स्टूडेंट 30,000 स्कूटीज उनको दिया जाएगा, 2,000 यूनिट फार्मर्स को दिया जाएगा, अप टू 25 लाख मेडिकल इंश्योरेंस। इस प्रकार 25 लाख तक गरीब से गरीब लोगों को चिंता का विषय नहीं है। 1,000 इंग्लिश स्कूल। तो ये दोनों मॉडल एकदम मिक्सअप वाला मॉडल है कि मिक्स एंड मैच की कौन सा। तो दोनों, आम आदमी पार्टी भी ये ले रहे हैं और कांग्रेस का भी शायद यही सब मॉडल लेके बीएमसी चुनाव में उतरने वाले हैं। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जो गरीब से गरीब लोग हैं, बोलेंगे ये दोनों पार्टी सिमिलर दिखता है, तो कैसे आपका आइडेंटिटी अलग कैसे होगा भेड़िया जी? देखिए, राजस्थान की जनता बहुत समझदार जनता है। मैं राजस्थान से, मेरे फोर फादर आते हैं, मैं वहां की नस जानता हूँ। वो कांग्रेस ने जो किया है वह एक नकलची बंदर जिसे कहते हैं ना, वो नकलची बंदर वाला काम है। भाई ये जो मैनिफेस्टो वो तैयार कर रहे हैं, ये जो भी कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, तो हमारे कार्यक्रम चुरा कर अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, ये तो जनता जान ही रही है। और रही बात गहलोत जी की, तो गहलोत जी की तो लड़ाई अपनों से है, किसी विरोधी पार्टी से है ही नहीं। वो पहले सचिन पायलट से निपट ले, राहुल गांधी से निपट ले, सोनिया जी से निपट ले, और हमारी पार्टी में ऐसा कुछ है नहीं। तो उन्हें असली सोने की परख राजस्थान की जनता को है और वो उसे एक्सेप्ट करेंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन संजय भेड़िया जी, जो प्रदीप जी ने अभी कहा, जहां तक अशोक गहलोत जी का प्रश्न है, भले आप ये कहें कि भाई वो नकलची बंदर है, यानी नकल की आपकी, ये बहुत सालों के बाद मैं सुन रहा हूँ ये टर्म, जो है दिल्ली के बाद सुन रहा हूँ कि किसी ने ये टर्म इस्तेमाल करी हो, नकलची बंदर। ये तो हम स्कूल में सुना करते थे दिल्ली के। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ संजय भेड़िया जी, आप क्योंकि आम आदमी पार्टी राजस्थान में है नहीं, तो राजस्थान में उनका विरोध करने वाला कोई है नहीं, ये बोलने वाला है नहीं कि भाई देखिए इनका जो बजट है वो तो एग्जैक्टली दिल्ली के बजट की कॉपी है। तो ये बात जो है आप लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे कि जो राजस्थान में जो अभी अशोक गहलोत जी ने जो कुछ भी दिया है, भले उसको सॉप्स कह लीजिए, फ्रीबीज कह लीजिए, लोगों के लिए सेवाएं कह लीजिए, वही चीज कांग्रेस मुंबई में करने वाली है बतौर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के तहत। तो आप उससे लड़ेंगे कैसे? क्योंकि जो आप ऑफर करेंगे एग्जैक्टली वही चीज कांग्रेस ऑफर करेगी, फिर आप क्या करेंगे? राजीव भाई, यह आपकी एक यहाँ बातचीत में एक छोटा सा करेक्शन कर दूं कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी नहीं है जी। मैं आपको देना चाहता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आम पार्टी की जड़ें पहुंच चुकी है। वहां लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हमारे पास में हो चुके हैं। ये समय आएगा, और ये राजस्थान का विषय है तो राजस्थान के प्रवक्ता और दिल्ली के प्रवक्ता इस पर बात करेंगे। आप मुझे महाराष्ट्र का, मेरे पास जवाबदारी है, मुंबई की है, उस पर हम बात करें।
तो मुझे ज्यादा खुलकर बोलने में मजा लेकिन आएगा। मुंबई में यही चीज कांग्रेस ऑफर कर रही है जो आप कह रहे हैं, 200 यूनिट फ्री, स्कूल्स, बहुत बढ़िया स्कूल बनाएंगे, Transportation 50% वो ट्रांसपोर्टेशन 50% डिस्काउंट, Yes, उसके yes. अलावा 65 साल के ऊपर से जितने भी लोग हैं उनके लिए फ्री ट्रैवल और उनको वजीफा भी मिलेगा हर 25 महीने लाख का, मेडिकल इंश्योरेंस। और उसके अलावा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ना जाने क्या कुछ वो दे रहे हैं, कोई 30,000 स्कूटी फ्री में दे रहे हैं, मुंबई में आकर के लैपटॉप फ्री में देंगे या फोन फ्री में देंगे, मुझे मालूम नहीं है। स्कूटी 25, वहां तो करीबन 30,000 स्कूटी बच्चों को दे रहे हैं, छोटे गर्ल चाइल्ड, गर्ल स्टूडेंट्स को। तो इससे कैसे लड़ेंगे आप ये बताइए ना संजय बढ़िया जी। भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाजी करती है, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ बात सुनिए, मैं आगे आ रहा हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाजी करती है वैसी ही जुमलेबाजी कांग्रेस भी करती है। अगर कांग्रेस अपने आइडियोलॉजी पर चलती तो कभी शिवसेना के साथ अलायंस नहीं करती। उनकी बातों का कोई भरोसा महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता, राजीव भैया करती नहीं है। आप देखिएगा कितना उनका बुरा हाल होता है, क्योंकि जुमलेबाजी से, कहने से काम नहीं चलता। देखिए दिल्ली में हमने जो कहा वो करके दिखाया, पंजाब में हमने जो कहा वो करके दिखाया। हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं और वो वही कहते हैं जो वो कर नहीं सकते। इतना फर्क है हमारे में और उनमें, और जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है। Right, we will talk a little bit more about that at some other point of time. In the meantime, संजय बेड़िया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बॉलीवुड के ऊपर आम आदमी पार्टी का रवैया क्या रहेगा, आपका खुद का रवैया क्या रहेगा? After all, Mumbai is the city of Bollywood. Mumbai is the city of television serials. Mumbai is the media city to this entire region, not just to this entire region, but to the whole country. For that, we thank you. Thank you very much, संजय बेड़िया जी, and all the very best to you. मैं उम्मीद करता हूँ जो आप कह रहे हैं कि एक ना एक दिन आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में भी सरकार बनाएगी। आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार और वंदे मातरम। थैंक यू राजीव भाई। Thank you so much. Thank you very much. And that's wonderful optimism. He gave a lot of information, Sanjay Bedia, Yes. about the status of the production houses in Mumbai Yes. and जो films है, related business है, किस प्रकार से suffer हो रहा है. He says only the top 4 or 5 or 6, 7 of them are really doing well, and the rest are And struggling. that also we don't know whether And they're we doing don't well know. or whether it Yes, is creative inflated. accounting. Bilkul. There's a lot of creative accounting in this No, business. he's got his hands on ground. He knows exactly what's the status there. He says Yes. the small production houses are suffering. There's no work, and then we need to believe. Even in now that. there is no work, by the way. Exactly, sir. Even after COVID. Yes, yes, It's only yes, the big yes. production houses which Yes. were already doing well Doing and well. which did not suffer even during COVID. Exactly. They are the only guys who are doing really well even now. Yes, They were doing yes, well yes, earlier. yes. They are doing well now. बिल्कुल जिस प्रकार जस्टिस मार्कंडे काटजू कहा करते थे कि राम मंदिर बन जाएगा, जय सिया राम, मैं भी जाऊंगा वहां पे, और जो अमीर लोग हैं वो अंदर जाके पूजा करेंगे श्री राम की, और जो गरीब हैं वो बाहर भीख मांगते हुए दिखेंगे। आई होप दैट चेंजेस। आई रियली एंड ट्रूली होप दैट चेंजेस। राइट एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द कांग्रेस वी हैव मिस्टर भरत सोनी। भरत सोनी साहब कांग्रेस के, और कांग्रेस में जो अभी नई ऊर्जा आई है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऊर्जा जब तक के चुनावों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक ये ऊर्जा उसी स्तर पर रहेगी, क्योंकि the BJP and the Shiv Sena, that is the BJP and the Balasavanchi Sena, is playing a waiting game. They want them to peak very, very early. They want them to peak right now, so that by the time the elections come around, they have nothing left in the tank. Bharat Soni ji, namaskar. Namaskar, namaskar, Rajiv ji. Namaskar, sir. How are you? Wonderful to see you again. I'm good. Sir, Namger, Advocate Pradeep Namger ji, namaskar. नमस्कार sir, How are Vande you, sir? Mataram. Vande Mataram, sir, Vande Mataram. सर, कांग्रेस ने तो राजस्थान में कमाल कर दिया। राजस्थान का जो बजट है वो तो क्रांतिकारी बजट है सर। बिल्कुल सर। सर, ऐसी चीज अगर आपने मुंबई में पेश कर दी तो यहाँ तो सभी पार्टियों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाने वाली है। The Rajasthan model. राजस्थान मॉडल, अभी दिल्ली मॉडल की बात हो रही थी, गुजरात मॉडल की बात होती थी, अब राजस्थान मॉडल की बात होने वाली है। वो 30,000 स्कूटी मुफ्त में दे रहे हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, लड़कियों के लिए। उसके अलावा 65 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उनको ना जाने क्या कुछ दिया जा रहा है। उसके अलावा ना जाने और कुछ बहुत कुछ मिल रहा है। 2000 यूनिट फार्मर्स के लिए, गैस 500 रुपए में, 100 यूनिट बिजली फ्री सबके लिए,
अप टू 25 लाख मेडिकल इंश्योरेंस, जिस प्रकार से 25 Yes, लाख तक yes, मेडिकल up के to- खर्चा सरकार उठाएगी, 1000 इंग्लिश स्कूल, रेवोल्यूशन. आई मीन वी नीड टू अपलॉड. अगर कुछ अच्छा गुड थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड, we need to appreciate that. My only thing is जैसे- I hope he is able to balance his budget if he comes back this year, because the elections are this year, as you know. सर आप ये बताएं भरत सोनी साहब, क्या यही सब चीजें आप मुंबई में ऑफर करने वाले हैं? देखिए राजीव जी, अगर ये जो राजस्थान का आपने बजट देखा तो वो हमारा बचत राहत और बढ़त योजना है. जी, इट्स अ मेगा बजट. यस, और अशोक गहलोत जी ने एक बिल्कुल सोची समझी, एक हमारी रिसर्च टीम है, उसने ये पूरा रिसर्च करके हम लोगों ने रेवड़ियां नहीं बांटी है. इट इज अ सब्सिडी व्हाट वी आर गिविंग बैक टू द पीपल ऑफ राजस्थान हु हैव. सर आप लोग क्यों रेवड़ी बोलते रहते हो? क्यों सोनी साहब आप रेवड़ी नहीं खाते हो क्या? मुझे तो बहुत पसंद है. क्या करते मुझे हो? भी रेवड़ी बड़ी पसंद है. जी, but बोलिए ना सर. रेवड़ी शब्द बड़ा यहाँ पर जिस प्रकार से लिया जाता है, जी, वो मुफ्त में बांटी जाती है, उस प्रकार से उसको रेवड़ियों को लिया जाता है. जी. एंड दैट इज व्हाई we often call it as a revdi. जी. So whatever budget what Ashok Gehlot ji has presented and Right. it is passed today the budget has passed. यस, So it is a very thoughtful budget, and after a proper thinking, after proper research, we have come out with that. The रसोई गैस में आप देखेंगे तो 76 लाख लोगों को ये इसका फायदा होगा. जी, सी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना आप देखेंगे तो वो भी एक वरदान साबित होगा. जी, सी 266 प्राइमरी स्कूल्स उसको अब प्रमोट किया है. 1453 प्राइमरी स्कूल्स अपग्रेडेड टू फ्रॉम प्राइमरी टू अपर प्राइमरी स्कूल. 1127 अपर प्राइमरी को सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट किया है. और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है वो एक वरदान साबित होने जा रही है. तो सर अभी आता हूं, ये तो मैंने जवाब दिया आपको राजस्थान के ऊपर. जी. अभी आपने पूछा मुझे कि मुंबई में हम लोग क्या किया. द सेम रिसर्च टीम इज वर्किंग ऑन मुंबई ऑल्सो. फैंटास्टिक. Sir, let them announce the election. Once they announce the election, we are there with that entire thing. Fantastic. And when do you think they will announce the election, sir? Sir, we were hoping that since the Prime Minister had come earlier last week, we were hoping to be announced anytime then. But now I don't think they are still in a dilemmatic state, because with the two elections there they are facing problem, because the Mahavikas Aghadi is giving them a good fight. Yes. So now they are very thoughtful that when they should go in for an election. मतलब So कि our ये जो research अपनी team दो is- इलेक्शन है, चिंचवड़ की और वो दूसरी चिंचवड़ कौन एंड सी साहब? कस्बा पेट की. हाँ, कस्बा पेट की. तो कस्बा पेट और चिंचवड़ की जो चुनाव है उसके जी. नतीजे या उसके परिणाम के ऊपर शायद निर्भर करेगा कि अगला चुनाव जो है, ये बीएमसी का चुनाव, टीएमसी का चुनाव, नवी मुंबई का चुनाव कब अनाउंस होगा. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? जी राजीव जी, हम लोगों ने ये हैंड्स डाउन जीता. इसके पहले का जो एमएलसी का चुनाव था वो जी. हम लोगों ने जीता. 4-1. अभी ये दोनों चुनाव भी हम लोग जीतेंगे. जी. Because our top team is working there, they all are united and everything is planned. But whatever So ये information दोनों we have चुनाव got, हम लोग Chinchwad you are जीतेंगे. winning, Kasba Pet, I think the BJP is ahead right now from whatever information we've got. I'm not sure, but you might even win both. One never knows. We will win. We will as of now, our people who are working there, the input says we are winning both the seats. क्या बात है सर? हाँ, The differences within the Congress. जो रिबेल्स और ऐसे उनको भी हमने मना लिया है. So we are not facing any problem there. Sorry, Saab, the way things are, first Sharad Pawar, first Sanjay Raut, then Sharad Pawar, continuously Nana Patole जी पे जिस प्रकार से उन्होंने प्रश्न उठा लिया कि he is responsible, MVA collapse हो गया, नाना पटोले जी ने ये नहीं किया, नाना पटोले जी ने स्पीकर को इस्तीफा दे दिया, बिना पूछे MVA को साथ में नहीं लेके, और अभी देवेंद्र फडणवीस इज अटैकिंग नाना पटोले कि देखो उनको अपने पार्टी में कोई सीरियसली नहीं लेता, तो नाना पटोले के बारे में मुझे मत पूछा करो. तो ये कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है नाना पटोले जी, उनको विद इन द पार्टी, विद इन द एमवीए भी अटैक हो रहा है,
opposition तो means देवेंद्र फडणवीस सत्ता में है, even they are attacking. नाना पटोले is the branch और आपके बाई इलेक्शंस भी है अभी हर चीज. तो ये कांग्रेस को कमजोर करने का रणनीति चल रहा है जिसमें एनसीपी एंड बीजेपी टुगेदर. हाउ डू यू सी इट? कैसे देखते हो? बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजिंग है. नामिया सर, ये सारा गेम जो है वो मीडिया क्रिएशन है, ये एक हाइप है. सी, अभी जैसे वहां से हमारे हाई कमांड से ऑर्डर आ जाएगा, दे ऑल दिस लीडर्स विल सिट टुगेदर and they will work together and they will work for the win-win situation of the Congress party, and rather in the largest perspective, MVA. Our MVA leader Uddhav Ji Thackeray is our leader, MVA leader. We all are working under them. So we have absolutely this will be sorted out. Our Patil Ji, who is an observer, was here in Mumbai for last 3 days. Everything is settled down. So we will come out with that only, what we have settled down and how it has settled down. ये सारी चीजें भी हम बताएंगे, लेकिन at this point there is no rebellion, no difference of opinion. All are united and we are there. We are going ahead for the BMC election. Moment it is announced, we are ready with that. And Pradeep ji, अगर आपको मैं बताऊं तो see, last time in 2017 when we contested the BMC election, Yes. we had contested all 227 seats. Yes. See, Congress party has got the unit in each and every municipal electoral ward, Quite true. and we have got something like 950 contestants who are asking for 227 seats. So our party is geared up. We are very in हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम. Our people are going to the local area wards and all. लेकिन अभी तक सर क्या है, छोटा सा एक सवाल पूछता हूँ आपसे, क्योंकि जी जैसे सर। बाकी सब पार्टियों की तैयारी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, जैसे जी। आम आदमी पार्टी हो गई, भले आप आम आदमी पार्टी को कुछ समझे ना समझे अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस जी। तरीके से कांग्रेस की जो कैंपेन है बड़ी लो प्रोफाइल है अभी. मैंने भाई जगताप जी को, आपके बाकी जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं, उन सबको अभी उस जोश में आते हुए नहीं देखा है जहां तक के बीएमसी का प्रश्न है. जी भारत सोनी जी. जी जी राजीव जी, सी एट द मोमेंट हमारी एआईसीसी का प्लेनरी सेशन चल रहा है, होने वाला है 24, 25 एंड 26 जी इन रायपुर. जी. So our major of the office bearers are very busy with that. We have got the PCC delegates who elected Mallikarjun Kharge ji. जी. So all are supposed to attend there. So they are not being seen on the ground. But at district level and ward level, all those who are not PCC delegates, all those who are not senior leaders are there going into the areas with Bharat, with Haath Se Haath Jodo Karyakram. Under that, we are very much geared up. And we may not be seen, in the public and all. We are not, but internally we all are working very hard, and we are very much geared up. Right. I'm so happy to hear that. I am really and truly very, very, very happy to hear that. But as you know, in Mumbai, for example, last time 2017 में जब चुनाव लड़े गए थे, आपके काफी नेता थे जो हम लोगों से मिले, हम उनसे मिले. जी. आप ही के नेता थे जो आज की तारीख में आपके साथ नहीं है. नहीं. उस वक्त वो ये कह रहे थे कि अगर 10 सीटें भी आ गई तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी. इस प्रकार वो जान जान के व्यंग्य कस रहे थे. और तो और छोड़िए, सीधे साधे तौर पर उनके तार बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे और कांग्रेस को भी ये मालूम था. आज की तारीख में इस प्रकार के जयचंद तो आपके साथ नहीं बचे हैं. जो जितने भी थे, मीर जाफर और जयचंद चले गए या अभी भी हैं? सर जिनको जाना था वो लोग जा चुके. हाँ, अभी हमारे पास जो है वो कोर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स, वेरी लॉयल सपोर्टर्स, वो लोग हमारे साथ हैं जी. एंड कांग्रेस ने कभी भी, आप 78 से आप जो पॉलिटिक्स देखेंगे हमारे कांग्रेस पार्टी का, इट इज द लॉयलिस्ट एंड हु आर वेरी कोर पीपल, दे हैव fought the election on the streets. Yes. And it is they who take the message down the line. Right. आप देखिए, अगर ये तो मेरी पार्टी का, अगर मैं एग्जांपल आपको दूं,
तो आज उद्धव जी के साथ देखिए, ग्रास रूट वर्कर्स आर स्टिल विथ उद्धव जी. It is the leaders who have left. Yes. Same example, if I can give in into the Congress party, see, people who had some problems, some issues, to solve their issues, they have gone from us. Right. And you can't say you cannot say they may return back also. Will they be welcomed back, sir? You never know. Politics is a game of unpredictable game. So as they have gone, some people have gone on the verge of election. When Yes. they were very much required for the party, they had left. Yes. The same people can turn back also. And what will the effect be on the party? If, say, people like Mr. Rajan Singh, Mr. Kripashankar Singh, all these people decide to come back, will they be welcomed again with open arms, or will there be resentment among the Congress workers? Sir, Congress workers will resent to some extent. Yes. But then after all, it is in a party. A lot of people who have left, they have come back. In past also, we have accepted them. There are many who have come and they are there they have absorbed into the organization at Mumbai Pradesh level also. Yes. They still sit with us. So, sir, Congress Party is such a massive organization that it keeps on accepting people. People go leave also. People come back at their own will. So, absolutely, we have no problem till the time our core congressmen, our core Congress But workers. that's a new one, Pradeep ji. That's a new one. This is the first time I'm hearing from a person in the Congress, such a loyal person of the Congress, that even if people like, say, our friends. Kripashankar, And Rajans, yes. if they come back, they'll be welcomed back. Fantastic. Soni साहब, कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है साहब. भरत सोनी साहब, कांग्रेस बिल्कुल विशाल है, बहुत बड़े दिल वाली है, मानना पड़ेगा. सोनी साहब, राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से हाईलाइट कर दिया है. He highlighted that 2 crore jobs किधर है. In fact, he's been the most vocal in the parliament where Modi is concerned. But tell me where the 2 crore jobs जो आपने promise किए थे every year. आपके development, where is employment? Where is price handling of price rise? Where is inflation? Where is the farmers' double income? Now Rahul Gandhi has been, apart from these basic questions, he also talked about Adani, BBC and everything. But he's tried to trash the entire development model of Mr. Modi. But Mr. Modi is still selling the development model. In Mumbai जैसे 2 visit हो गए, उन्होंने कहा कि हमने 7 मेजर प्रोजेक्ट मुंबई के लिए दिए हैं. 14 मेट्रो लाइंस, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, बुलेट ट्रेन, आइरोली कड़ाई टनल रोड, गोरेगांव मुलुंड रिंग रोड, कोस्टल रोड. So he's trying to impress the Mumbaikars that look, this is a developed plan we are selling. Where Rahul Gandhi का जवाब मोदी साहब ने पार्लियामेंट में नहीं दिया, and Rahul Gandhi continuously go on castigating that मेरा सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला. आप कैसे इस डेवलपमेंट प्लान को, बिकॉज बीजेपी के आज के तारीख में यह है कि मुंबई को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और इसी मुंबई को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे वोट मांग रहा हूं. आर द पीपल गोइंग टू लिसन टू द डेवलपमेंट मॉडल? सोनी साहब. नामदेव साहब, राहुल गांधी ने 5 क्वेश्चंस पूछे थे पार्लियामेंट के अंदर. मैं आता हूं आपके डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर आता हूं, मैं जवाब देता हूं उसका आपको. लेकिन राहुल जी ने जो 5 सवाल पूछे, वो क्या पूछे? देश के बाहर अडानी की शेल कंपनी किसकी है? शेल कंपनी से आ रहा पैसा किसका है? शेल कंपनी पर सरकार ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया, जबकि अडानी पोर्ट, अडानी एयरपोर्ट और ये डिफेंस का डोमिनेंस है. प्रधानमंत्री जी को पूछा कि आपके फॉरेन ट्रिप्स पर अडानी जी कितने बार साथ गए, कितने बार आपकी विदेशी यात्राओं में अडानी जी ने आपसे मुलाकात की. प्रधानमंत्री जी ने विदेश दौरे के बाद उसे देश में अडानी जी के कितने बार गए. पिछले 20 साल में अडानी जी ने भाजपा को कितने पैसे दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्शन में जो पैसा है वो कितना दिया, उसके बारे में राहुल जी ने सब ये क्वेश्चन क्यों पूछे इस बार प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बजट के स्पीच के टाइम पे, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के टाइम पे? क्योंकि अडानी जी के ऊपर सवाल उठ रहे थे और अडानी जी के कंपनी का नेटवर्क, कंपनी के शेयर्स, ये सारे गिर गए थे. और इतने बड़े समूह का जब ये फॉल होता है
तो उसके ऊपर लोकसभा के पटल के ऊपर प्रधानमंत्री ने जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इसका जवाब देने के बजाय उन्होंने क्या पूछा उसको, जवाब तो दिया ही नहीं, लेकिन उस 5 सवाल के जो जवाब दिए नहीं, लेकिन उसको क्या बोला कि आपकी सरनेम आप गांधी क्यों लगाते हैं और आपकी सरनेम नेहरू क्यों नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी को इतना ये भी नहीं पता कि हम लोग, हमारी जो संस्कृति है उसमें हम लोग मेरे पिताजी के नाम, मेरे फादर के नाम की सरनेम हम लोग यूज करते हैं और फादर की नाम की सरनेम नहीं कि मदर के नाम से आने वाले सरनेम यूज करते हैं। तो ये इस प्रकार की जो जुमलेबाजी है वो हमारे पीएम साहब करते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग इतना उनको डेवलपमेंट मॉडल जो यहाँ वो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट मॉडल अगर आप देखें तो मेट्रोस की शुरुआत किसने की थी? मेट्रो की शुरुआत सरदार मनमोहन सिंह जी ने की थी। उसका ही एक्सटेंशन अभी इनॉग्रेशन हो रहा है। बुलेट ट्रेन जरूर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका अगुवाई की है, उसको आगे लाए हैं। देखते हैं कब तक वो साकार होता है, क्योंकि अभी गुजरात में भी बहुत सारी लैंड एक्वायर करना बाकी है और गुजरात से आगे वो बुलेट ट्रेन, तो बुलेट ट्रेन जब आएगी तब हम लोग देखेंगे कि वो डेवलपमेंट मॉडल काम कर चुका या डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर कुछ काम हुआ। दूसरी बात, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड ये प्रपोज्ड रोड है एंड इट कीप्स ऑन। सी, ये डेवलपमेंट मॉडल, डेवलपमेंट विल गो ऑन। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट कभी भी बीच में रुका होता है। पार्टियां आती है, सरकारें आती है और सरकारें जाती है। द डेवलपमेंट प्रोसेस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। यस। तो उस प्रकार से अभी प्रधानमंत्री जी जो सब इनॉग्रेशन करते हैं वो हमारे कांग्रेस के द्वारा दिए गए ही प्रोजेक्ट वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं। वो कोई उनका ब्रेन चाइल्ड या उनका सपने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, भरत सोनी साहब जी, एक छोटी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ये पर्सनल चीज है, बड़ी व्यक्तिगत चीज है। हमारा जहां पर ऑफिस है सर, बीकेसी में ऑफिस है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है। हमारे ऑफिस के बाहर, हमारी खिड़की के बाहर एक फ्लाईओवर बन रहा था पिछले को 3 साल से, 3.5 साल से जी, अभी तक बिल्कुल रुका हुआ था। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई, 6 महीने के अंदर अंदर तैयार हो गया। और पिछली बार जब नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने यहीं के 2 फ्लाईओवर्स का उद्घाटन भी कर दिया। आज इन फ्लाईओवर्स की वजह से यहां पर ट्रैफिक जैम तकरीबन खत्म है, मतलब नहीं है, ना के बराबर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है कोविड था, 2 साल के लिए कोविड था, लेकिन जो एसेंशियल प्रोजेक्ट्स थे वो चल रहे थे। आखिरकार ये वाले जो प्रोजेक्ट्स थे इतनी देर तक क्यों बंद रहे? ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के कार्यकाल के दौरान मानते हैं कोविड आया, लेकिन जिस प्रकार दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का काम चलता रहा, जिस प्रकार मुंबई में भी कोस्टल रोड का काम चलता रहा, वैसे ये काम क्यों नहीं हो पाए? भरत सोनी जी। सर देखिए, ये काम ऐसे तो नहीं कि शिंदे फडणवीस जी की सरकार आते ही ओवरनाइट उन लोगों ने कोई डबल काम करना शुरू कर लिया, या जिस प्रकार से 24 आवर्स वो लोग काम करने लग गए और ये उन्होंने कंप्लीशन करवाया। दिस प्रोजेक्ट्स वर ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। सी, अगर ये 2 साल कोविड के बाद भी जब ये प्रोजेक्ट्स चल रहे थे तो वो दे वर ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ, इट वाज इन अ पाइपलाइन, दे वर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। और ये जो वर्ज ऑफ कंप्लीशन था उसको आपने थोड़ा सा एक्सपेडाइट करके अगर आपने इनॉग्रेशन कर दिया एंड दे टेक द क्रेडिट, फाइन, यू टेक द क्रेडिट, but finally it is the MVA government which is. But why couldn't we do it? Why couldn't the MVA do it? I'm sorry, not we, but why couldn't the MVA do it? They could have done it. Let's be very clear. Why were these projects being stalled? Because I'll tell you what, just hang on, hear me out. यहाँ पर क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी नेता हैं, उनको एक मौका मिल गया है। क्या मौका मिल गया है कि जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, कांग्रेस के बनाए हुए भी प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये मान करके चलता हूँ, भले शिवसेना हो, बाला साहब आंची शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, हर पार्टी ने महाराष्ट्र के हित के लिए काम किया है। कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसने महाराष्ट्र के हित के लिए काम नहीं किया होगा, किया होगा। लेकिन जो बार बार लांछन लगाया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिन लोगों के पास टेंडर था उनको बार बार बंगले पे जाना पड़ता था,
बैग लेके जाना पड़ता था, अगर बैग का साइज छोटा होता था तो प्रोजेक्ट नहीं होता था। इस लांछन के खिलाफ, इस आरोप के खिलाफ किस प्रकार आप जवाब देंगे सर? भरत सोनी जी। सर देखिए, ये ऐसे आरोप और प्रति आरोप होते रहते हैं। जी। जब रूलिंग पार्टी जो कोई आती है उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप होते रहते हैं। वो आरोप कहां तक सच्चे हैं वो उसको प्रूव करना चाहिए और उसके सामने, लोगों के सामने लाना चाहिए कि डेवलपमेंट में ऐसे ऐसे काम हुआ और उसके कारण डेवलपमेंट रुका पड़ा था। लेकिन ऐसे मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई हो रहा था और इस प्रकार से कोई बातें हो रही थी। नहीं तो अचानक ये देखिए, अभी मैं एक आपको एग्जांपल दूं जी बताएं कि सर। मेट्रो का कारशेड कांजूरमार्ग में लेके गए जी। हाँ, अभी एनवायरमेंटलिस्ट को ध्यान में रखते हुए ये कॉम्प्लेक्स वहां गया। अभी आज उसी कॉम्प्लेक्स के लिए बोला जा रहा है कि आप कांजूरमार्ग इज एन आइडियल प्लेस, आपको कांजूरमार्ग में लाना ही पड़ेगा। नाउ दे आर रीथिंकिंग ऑन दैट। जी। जो समर्थनगर से जो कांजूरमार्ग मेट्रो जाएगी उसके लिए आपको वहां पर देना ही पड़ेगा। जी। नाउ व्हाट दे हैव टू से ऑन दैट। सी, तो इस प्रकार से उसको करप्शन और उसको ये बैग वाली और ऐसे सब पॉलिटिक्स का ऐसे सब नाम देकर उसको उन नेताओं को पीछे लगना ये ठीक नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि फडणवीस जी इतने अच्छे नेता है। फडणवीस जी बहुत ही, उसको बोलते हैं बहुत वेल रेड, वेल एजुकेटेड एंड ही प्रेजेंट्स वेरी वेल। यस सर हाँ, तो फडणवीस जी पिछले एक 3-4 दिनों से ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे जेल में डालने का था, मुझे जेल में डालने वाले थे। जी। तो ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन को जेल में डालना कितना मुश्किल होता है, ये फडणवीस जी नहीं जानते हैं क्या? और ऐसा उन्होंने क्या काम कर दिया था कि जिसके कारण उनको जेल हो सकती थी, वो क्यों नहीं लोगों को बता रहे वो? प्रदीप जी। सोनी साहब, सेकंड थिंग इज, कल ही जितेंद्र अवार्ड जी पे जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि देयर इज अ थ्रेट टू हिज लाइफ, देयर इज अ थ्रेट टू हिज फैमिली। कुछ दिनों पहले जैसे नाना पटोले वगैरह कह रहे हैं कि अजित पवार जी बोलते हैं आदित्य ठाकरे के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ, एक लोकल एमएलए पर अटैक हुआ, एक पत्रकार कोंकण में जिस प्रकार से हत्या was killed. So, do you feel like the opposition, Congress, everybody says there's a collapse of law and order? Because it's a serious threat. If an MLA is being threatened by a gangster that he'll be eliminated, and Jitendra Awad कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, he was a minister, a housing minister in the last government, MVA government. If he's complaining that he's got a death threat, people have been calling him and telling he'll eliminate. तो क्या एक वातावरण ऐसा बन रहा है, एक फियर का वातावरण बन रहा है? Is the law and order collapsing? How do you see, and how do you see Fadnavis reacting to it? Sir, the killing of the journalist who has raised the issue by the person against whom the issue has been raised. So that is very unfortunate, and we all have to condemn that. This kind of things, you cannot do with the journalist, because journalists are the people who are expressing what the pulse of the people is. So it is literally in Konkan and in Sindhudurg. See, the law and order has literally failed. We could not protect that person, and that journalist was complaining. He had been complaining before that also. Before that incident, he had complained to that also. Before that, one Sarpanch's son was crushed, under the vehicle. Ji. And he has lost his both the legs. That's right. See, when a Sarpanch's son is facing such, so a terror tactics is been implemented in that area. Okay, either you join us or you face the consequences. So this kind of things Maharashtra is a very progressive state. This Ye kind of things pehle nahi never hota. happened. This kind of thing happened in Maharashtra. Yes. So same way, although Jitendra Awad being my college friend, my college time friend, but he is in the NCP. But if he is facing some threat, Yes. means really, and that too in the area where CM comes from, it is a very sensitive district, very sensitive lake city, and there if somebody, and very, neighboring Mumbai, if the police and all, if you are unable to protect the legislator, what the Commonwealth, where he would go?
उसकी क्या औकात कॉमन मैन की? जी दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। और जहाँ तक जितेंद्र अवार्ड साहब का सवाल है, मिस्टर जितेंद्र अवार्ड was perhaps one of the most competent ministers in the NBA. He did a wonderful job. I still remember he was one person who used to take instant decisions. ये कहा जाता था कि जितेंद्र अवार्ड साहब के डेस्क पे आपको फाइल नहीं दिखेगी. All the files used to be cleared immediately. ये मानते हैं, हर एक को ये मानता है. Absolutely. और जितेंद्र अवार्ड साहब अगर कुछ बात बोल रहे हैं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए. गंभीरता वो से वैसे ही- लेना चाहिए। वो वैसे ही हवा में नहीं बोलते. लेकिन चलते चलते सर ये बताएं, आपके खुद के अनुमान में, आई एम आस्किंग यू अ पर्सनल क्वेश्चन, या when do you think the BMC elections will be announced? When? Now, 6 months later, 1 year later, 2 years later, Or 2024. or after 2024? sir, we'll look upon RKB and Pradeep Nambiar ji. They have got best inputs into the system. Only they can tell us when it will be final, because we are also very eagerly waiting. Our organization is all set to go in for the election. So it is $1 million question. Even personally, even otherwise, we are also waiting for that. We also don't know when they would, because they are in the habit of not giving an opportunity to the opposition to prepare for them. So Yes. now they have seen that we have prepared ourselves and we are waiting. So now they are in a dilemma. Suppose if we announce now and if they lose, so what will happen? And in all probabilities they are going to lose. We are going to win hands down BMC. We will not allow BJP to capture power in BMC. Right? Fantastic. Bharat Soni साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. It's a real pleasure talking to you. Really wonderful talking to you. And I tell you what, I'm really impressed with the Congress these days. You know, all the Congress spokespersons, all the Congress leaders, they've got this new passion, this new Full energy. I Energized. am so impressed. Yes. Last I saw this was way back, 30, 35 years ago. And suddenly it's all back. Congratulations to you. Keep it up. Only thing is, I hope you are able to keep up this level of energy till such time as the BMC elections are announced, because what the BJP and the Balasabanchi Shiv Sena would be hoping for would be that you peak too early, and by the time the elections come around, you'll have nothing left in the tank. I think that's what they're aiming for. So, I wonder what you Let will us have to put do the there. fingers crossed. We are Rajiv ji, Pradeep Nambiar ji. You see, you both make us so comfortable. You are grilling us, but then you make us so comfortable during the debate that it is not something like in other channel. You are not shouted down, or you are not. That's not our job, sir. So that I appreciate about this show. So Sir, we don't do that. So, and our as far as our spokespersons are concerned, the aggressive team has been set from the J. Ramesh sir. Pawan Kheda ji will be there in Mumbai tomorrow morning. Wonderful. Pawan, So, our, see, our very own we friend Mr. are- Pawan Khera, who used to work as the right-hand man of Sheila Dikshit ji long Yes. time ago. Yes. Wonderful man. Really, And really wonderful. Rajiv ji, to add, if you can permit one more 15 seconds. Please go ahead. Bhai Jagtap ji and Charan Sapra ji is a combination of good organizational skill and a labor leader. Yes. So this is keeping the things going. Right. So we are very proud of that. All Thank the you, very sir. best. Thank you very much, sir. All the very best. Thank you Bharat for Soni ji, calling me on great the pleasure show. meeting you. Great pleasure talking to you Same again. here, same here, same Thank here. you very much. Thank you so much. Right, so we have the Congress and Yes. very It's going to be a big fight for the BMC elections too. Whenever it's come, Whenever it comes. 2023, 2024, or immediate. or 2030. One never knows. चलिए, that's it. That's all we've got for you in this show today. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप लोग अपने comments भेजें on Nation Now के ऊपर अपने comments भेजें. Please do send your comments in the comment section of the YouTube video and keep watching Nation Now. Nation Now को आप देखते रहें. हम होंगे यहीं पर कल. प्रदीप जी और मैं यहीं पर होंगे. इसी जगह पर, इसी शो में, इसी चैनल पर, जो चैनल यानी नेशन नाउ जो हमेशा आपके साथ है. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.